رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا وأزواجنا من النار آمين يا رب العالمين. ربي يسر ولا تعسر وتمم الخير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مختصر ترجمہ اور مختصر تفسیر پارہ ہے ہمارا 24 اور ہم ہیں سورہ زمر پہ 24واں پارہ شروع کرنے لگے ہیں. سورہ زمر آیت نمبر 32. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. فمن أظلم، پھر کون بڑا زیادہ ظالم ہے اس سے جو جھوٹ کہے، جھوٹ باندھے اللہ پر، اللہ کے بارے میں جھوٹ بولنا، اللہ پر جھوٹ باندھنا کیا ہے؟ موسٹ امپورٹنٹ، سب سے بڑا جھوٹ کہ اللہ کا کوئی شریک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. پھر یعنی اس کی مثال کیسے؟ جیسے اللہ نے کوئی بیٹا بنا لیا یا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. پھر اللہ کے حرام کردہ کو حلال کہہ لینا، حلال کردہ کو حرام کہہ دینا، اس کے حلال حرام میں تبدیلی کر لینا، یہ بھی اللہ پہ جھوٹ باندھنے کے کے برابر ہے. پھر اس کے بعد ایسی کوئی بات کہنا جو اللہ نے نہ کہی ہو. یہ جو تیسری کیٹیگری ہے نا اور دوسری کیٹیگری ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے مسلمس کے لیے، کیونکہ ہم اکثر ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، اللہ نے ایسے کہا ہے، قرآن میں یہ بات آئی ہے. جب تک ہمیں بالکل شیور نہ ہو، آیت ہماری آنکھوں کے سامنے نہ ہو، کبھی اللہ کے نام سے کسی اس طرح کی کسی بھی بات کو منسوب نہ کریں. اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جس نے مجھ پر کوئی جھوٹ باندھا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، مقدعو فی النار. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی کبھی کوئی بات ایسے نہیں کہنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے. اگر کوئی بات آپ کو ایسی لگتی ہے کہ ہاں آپ نے اس کو اپنے مذہب میں اس پر عمل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن بالکل اسپیسیفکلی اللہ کے نام کے ساتھ جڑی ہوئی یہ بات نہیں ہے، لیکن ہم مذہب پہ اس پر عمل کرتے ہیں، تو آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے یہ، یا اچھے اخلاق کا حصہ ہے یہ. ہم اس طرح سے بات کر سکتے ہیں، لیکن خاص کر نام لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا اللہ کے ساتھ کسی بات کو منسوب کرنا بہت غلط بات ہے. کیونکہ ازلم آ رہا ہے، ازلم سپرلیٹو ڈگری، کون سب سے بڑا ظالم؟ تو اللہ جس کو ظالم کہے تو بہت احتیاط کرنے والی بات ہے. والذی جاء بالصدق، اور وہ شخص جو لایا ہے سچ کو. یہاں مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں، پچھلے سارے انبیاء، کیونکہ سب سے بڑا سچ توحید ہے. اگر سب سے بڑا جھوٹ، سب سے بڑا ظلم شرک ہے، تو سب سے بڑا سچ توحید ہے، لا الہ الا اللہ دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے. تو وہ شخص جو لایا سچ کو، وہ صدق بھی، اور اس نے تصدیق کی، اس کی سچ کی تصدیق بھی کی. مراد یہاں حضرت ابوبکر صدیق بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کہ انہوں نے معراج کی تصدیق کی تھی. اولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں. تو سارے انبیاء بھی ہو سکتے ہیں. کوئی انبیاء والی بات اب کوئی بندہ آگے پہنچا رہا ہے، کوئی توحید کو آگے لے کر جا رہا ہے، تو پھر وہ بھی بالصدق یعنی سچائی کو آگے لے جانے والوں کی کیٹیگری میں فال کرے گا. لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے وہ ہیں جو وہ چاہیں گے اپنے رب کے پاس. ذالک جزاء المحسنین، یہ بدلہ ہے محسنین کا. لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، تاکہ وہ دور کر دے، اللہ رب العزت دور کر دے ان سے ان کا سب سے بدترین وہ جو انہوں نے کیا، یعنی برے اعمال دور کر دے. یہ جو کفر یکفر ہوا ہے نا، مطلب کفر، پتہ ہے ہم کافر کے حوالے سے اس کو جانتے ہیں، لیکن اس میں معنی ہوتے ہیں ڈھانپ لینے کے. تو قیامت کے دن اللہ بندوں کی برائیوں کو ڈھانپ لے گا، خاص کر کے اسوأ الذی عملوا، بدترین سب سے برا جو انہوں نے کیا. یہ کون سا بندہ ہے جو توحید کو آگے لے کے جا رہا ہے؟ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، بات یہ سمجھائی جا رہی ہے، لیکن دنیا میں جو ہم کرتے ہیں، جس کا رنگ ہماری زندگی پہ نظر آتا ہے، جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، وہ کیا کرتی ہے؟ وہ جو دوسری سائڈ والی چیزیں ہیں ان کو ڈھانپ دیتی ہے، ان کو ختم کر دیتی ہے. تو بندہ دعویٰ کا کام کر رہا ہے یا کوئی بھلائیاں کر رہا ہے، تو ایسا نہیں کہ غلطیاں نہیں ہوں گی، غلطیاں ہوں گی اس کی، لیکن وہ چھوٹی چیزیں دب جائیں گی اس کے اس بڑے کام کے مقابلے میں. تو اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں؟ تاکہ دور کر دے اللہ رب العزت ان سے بدترین جو انہوں نے عمل کیے، وہ یجزیہم اجرہم، اور جزا دے ان کو ان کا اجر کی احسن کے بدلے جو تھے وہ عمل کرتے. تو جزا ملے گی سب سے بیسٹ جو کام کیا اس کو اسٹینڈرڈ بنا کے اس کے حساب سے سارے اعمال کو کی جزا دے دی جائے گی.
और जो बुराइयां होंगी वो ऐसे लोगों की मिटा दी जाएंगी। अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, क्या नहीं है अल्लाह काफी अपने बंदे को? और वो डराते हैं आपको इन हस्तियों से अल्लाह के सिवा। वमन युद्लिलिल्लाहु फमा लहु मिन हाद, जिसको भटका दे अल्लाह तो नहीं इसके लिए कोई हिदायत देने वाला। देखिए, न सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डराया जाता था कि हमारे बुतों की मार तुम पर पड़ेगी, बल्कि पिछले भी हम दूसरे नबियों की भी मिसालें कुरान से देख चुके हैं कि उन्हें भी डराया जाता था कि हमारे बुतों की मार तुम पर पड़ेगी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि खुद जानते हैं कि ये बुत नफे नुकसान के मालिक नहीं है, तो वो अल्लाह के सिवा किस हस्तियों से डरा रहे हैं? कुरैश खास करके डरा रहे थे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, और जिसको भटका दे अल्लाह तो नहीं इसके लिए कोई हिदायत देने वाला। वमन यहदिल्लाह, और जिसको हिदायत दे अल्लाह, यहाँ हिदायत से मुराद तौफीक है, किसी को नेक काम की तौफीक मिलती है, कोई ऐसा हालात बन जाते हैं, फमा लहु मिन मुदिल, तो नहीं इसके लिए कोई भटकाने वाला है। अलैहिस्सलाहु बिअज़ीज़िन ज़ी इंतकाम, क्या नहीं है अल्लाह रब्बुल इज्जत गालिब इंतकाम लेने वाले? वला इन सअलतहुम मन खलक़ समावाति वल अर्द लयक़ूलुन्ना अल्लाह, और अगर पूछो तुम इनसे किसने पैदा किया आसमानों को और जमीन को, तो जरूर वो कहेंगे अल्लाह ने। कह दीजिए क्या फिर देखा तुमने जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह के सिवा, अगर इरादा कर ले मेरे साथ अल्लाह। पहले वो पीछे क्या कह रहे थे काफिर कि हमारे बुतों की मार पड़ेगी, यहाँ देखिए इस आयत को इस हवाले से गौर से देखिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए कहलवा रहे हैं कि इनसे कहो कि अगर इरादा कर दे मेरे साथ अल्लाह किसी भी नुकसान का, हल हुन्ना काशिफात, तो क्या वो देवियां या वो बुतों के लिए मोनस का सीगा भी आता है, या देवियां कह लें क्योंकि लात उज़्ज़ा मनात ये देवियां ही थी असल में। तो क्या वो देवियां दूर करने वाली हैं इस तकलीफ को? और अरादनी बिरहमा, या अल्लाह रब्बुल इज्जत इरादा कर ले मेरे साथ रहमा का, हल हुन्ना मुमसिकातु रहमती, तो क्या रोकने वाली है इसकी रहमत को? कुल हस्बी अल्लाह, कह दीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त काफ़ी है मुझको, अलैहि यतवक्कलुल मुतवक्किलून, इसी पर तवक्कुल करते हैं तवक्कल करने वाले। हमें सूरह ज़ुमर पे आयत नंबर 38 पे और 24वां पारा है। कुल या कौमी अमलू अला मकानतिकुम, कह दीजिए मेरी कौम अमल करो अपनी जगह पर, बेशक मैं अमल करने वाला हूँ, पसंद करीब तुम जान लोगे। यानी अच्छे नताइज के लिए अमल लाजिम है, और अमल के लिए बेहतरीन प्लानिंग लाजिम है, और प्लानिंग करने के बाद फिर कोशिश लाजिम है। ये पूरी एक चेन है, ऐसे नहीं होगा ख्वाहिशात की बुनियाद पर। अगर हमें कुछ काम करना होता है, हम कोई अलार्म लगाते हैं, कोई तरतीब बनाते हैं, आगे पीछे उस वक्त पे जो दूसरे काम करने थे आगे पीछे उनको निपटा के पहले से रखते हैं, कोई प्लानिंग करते हैं, ये सारी जिंदगी का असूल है। और यही असूल आखिरत कमाने का भी है। आखिरत कमाने के लिए भी मिसाल के तौर पर जन्नत में गुरफात हैं जो क्रिस्टल के घर होंगे। जन्नत के गुरफात पाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ चीदा चीदा चीजें बनाई, सच बताई, सलाम को आम करो, खाना खिलाओ, उस वक्त इबादत करो जब लोग सो रहे होते हैं, अमन के साथ जन्नतों में दाखिल हो जाओ। तो अब कोई बंदा ये सोचे कि अपना टारगेट बना ले कि अल्लाह मैंने उस घर को हासिल करना है, ये मेरा टारगेट है, तो वो यकीनन कोई प्लानिंग करेगी, हफ्ते में कोई एक दिन बनाएगी, 2 दिन बनाएगी, या कोई भी कोई सेटअप बनाएगी कि मैंने खाना जरूर खिलाना है। फिर खुद भी अपने अपनी नफ्स को भी ट्रेन करेगी, अपने बच्चों को भी ट्रेन करेगी कि बेटा हर एक को सलाम करना है, जिसको जानते हैं या जिसको नहीं जानते। ऐसे ही है ना, फिर तहज्जुद के लिए अपनी को ट्रेनिंग करेगी कि उस वक्त नमाज पढ़नी है जब सब सो रहे हैं। तो एक प्लानिंग होती है, प्लानिंग के हिसाब से चीजों में जान मारी जाती है, कोशिश की जाती है, तभी कोई चीज अचीव होती है ना। कुल या कौम अमलू अला मकानतिकुम, ए मेरी कौम तुम अपनी जगह अमल करो, मैं भी अमल करने वाला हूँ। फसौफ तालमून, नताइज जो भी होंगे तुम भी देखोगे, मैं भी देखोगे, मैं भी देखूंगा। मैं याती ही अजाब युखजी, कि कौन आता है इसके पास एक अजाब जो रुस्वा कर देगा इसको। यानी नताइज क्या होंगे अगर अजाब की शक्ल में हुए, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि किसको वो अजाब रुस्वा कर देता है, और उतरता है इस पर आखिरत का अजाब। देखिए बदर आई गई थी इनका कुछ अरसे बाद। इन्ना अंजलना इलैकल किताब लिन्नासि बिल हक, इन्ना बेशक हमने नाजिल किया आप पर किताब लोगों के साथ हक वाली। फमन इहतदा, तो जो हिदायत पा जाए तो उसी के अपने नफ्स के लिए, और जो कोई भटके तो बेशक भटकता है अपने ही नफ्स के खिलाफ। वमा अंत अलैहिम बेवकील, और नहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इन पर कारसाज। अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत फौत करता है नफ्सों को इनकी मौत के वक्त, और वो जो नहीं मरते अपनी नींद में बस रोक लेता है इसको, फैसला करता है उस पर मौत का। यानी कुछ हिस्सा नींद में रूह का कब्ज हो जाता है, तो जिसने वापस आना होता है, जिसकी मौत नहीं लिखी होती, उसका वो हिस्सा लौटा दिया जाता है। और जिसने दुनिया से चले ही जाना है तो उसकी पूरी रूह कब्ज कर ली जाती है। ये इसलिए बता रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत कि जब थोड़ा हिस्सा रोक सकते हैं, तो फिर क्या पूरा, और फिर उसके बाद पलटा कर वापस सुबह में जो हम कहते हैं ना आहियान आबादा मा मातरा, हमें जिंदा किया मरने के बाद, तो जब सुबह रूह को पलटा सकते हैं, तो जब एक दफा पूरी रूह फौत कर ली जाएगी, ले ली जाएगी, तो क्या आखिरत में दोबारा नहीं उठाया जा सकता? रूह का कुछ ऐसा हिस्सा फौत हो जाता है कि हमारी कुछ सेंसेस चले जाते हैं,
ہم اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ ہم بول نہیں سکتے، ہم سن نہیں سکتے، ہم دیکھ نہیں سکتے، بہت ساری ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں. لوگ آنکھیں کھول کے سو رہے ہوتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے، کچھ لوگ آنکھیں کھول کے سو رہے ہوتے ہیں، لیکن روح کا وہ حصہ چلا جاتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ روح کا تعلق آسمان کے ساتھ ہے. جو خوابوں میں سیر کرتی ہے نا ہماری روح ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو کیونکہ روحیں آسمانوں پہ بہت عرصہ کولڈ اسٹوریج میں رہی ہیں، کیونکہ بنا دی گئی تھی نا حضرت آدم کی پشت سے، ساری روحوں کو نکالا جا چکا ہے ایک دفعہ. تو ان کا تعلق آسمانوں سے ہے. وہ پھر ٹریول بھی اسی حساب سے کرتی ہیں، لمحے میں کہیں پہنچی ہوتی ہے، لمحے میں کہیں پہنچی ہوتی ہے. خواب میں پھر دیکھیے جو خواب آتا ہے بندے کو، جو اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ وحی کا 27واں حصہ ہے، یعنی کوئی کلوز جو دکھائے جاتے ہیں. خواب تین طرح کے نا، جو اللہ کی طرف سے خواب ہے، میں ان کی بات کر رہی ہوں. تو وہ جو کلیوز دیے جاتے ہیں، جو نشانیاں دی جاتی ہیں، وہ بھی اصل میں روح کا ہی کنیکشن ہوتا ہے فرشتوں کے ساتھ، آسمانوں کے ساتھ، جس کی وجہ سے وہ خواب نظر آتے ہیں. بہرحال یہ ایک مفسرین نے اس کی ایک تفسیر بیان کی ہے. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. تو باقیوں کی روح لوٹائی جاتی ہے ایک مقررہ وقت پر. إِنَّ فِي ذَلِكَ، بے شک اس میں، یعنی روحوں کے قبض کرنے میں، رات کو سونے میں، لآیات، ایک نشانی ہے اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہو. أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ، یا انہوں نے بنا لیا اللہ کے سوا کچھ سفارشی. کہہ دیجئے کہ کیا بھلا اگر ہوں وہ نام ملکیت رکھتے کسی چیز کی، یعنی اصنام اور دیویاں جو بنا رکھی ہیں، اگر وہ کوئی ملکیت نہ رکھتے اور وہ عقل نہ رکھتے ہو، تو جو تمہارے سامنے نہیں بول سکتے، وہ قیامت میں تمہاری سفارش میں کیا بولیں گے؟ سفارشی کہتے تھے نا ان کو وہ. قل للہ الشفاعۃ جمیعا، کہہ دیجئے اللہ کے لیے ہے شفاعت ساری کی ساری، اسی کے لیے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی. ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا اکیلے اسی کا، اہل مکہ سے کلام چل رہا ہے یعنی ان کے سامنے، یا جنرلی بھی کچھ ایسی باتیں ہیں، آپ جو لوگ ہیں جو قبر پرستی وغیرہ کرتے ہیں ان کو سامنے رکھ لیں، کہ جب صرف وحدہ، صرف اکیلے اللہ کا ہی ذکر ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، سکڑ جاتے ہیں، نفرت کرنے لگتے ہیں، غم آ جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے، چہرے سے اظہار ہونے لگتا ہے. کن کے؟ قلوب الذین، جب وہ دل سکڑتے ہیں نا ان لوگوں کے جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پہ، تو ان کے چہروں سے نمایاں ہو جاتی ہے یہ چیز. کسی کے سامنے جا کے اگر یہ کہہ دیں کہ مجھے قبر والے کی شفاعت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت ہی ہے، مجھے پار لگا دیں گے، مجھے پورا بھروسہ ہے اللہ پہ، تو چہرے پہ ایک ریئیکشن آئے گا سامنے والے کی. یہ ایک واقعہ میں سن رہی تھی خاتون کا، وہ اپنا ایکسپیرینس بتا رہی تھی کسی کرسچن نرس کے بارے میں. تو وہ کہہ رہی تھی کہ میں جاتی تھی تو وہاں پہ کچھ لوگوں کو، میں ہاسپٹل میں کوئی ان کا تھا، تو وہ جو دوسرے نان مسلم تھے ان کو بھی میں قرآن سنا دیا کرتی تھی. تو وہ ایک دن پوچھنے لگی عورت کہ یہ تم کیا سناتی ہو اور کیا چیز ہے یہ پسند کرتی ہے پبلک اس چیز کو یہاں؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں نے جب انہیں بتایا نا توحید، جیسے ہی میں توحید کے بارے میں آئی، باقی سب کچھ اوکے چل رہا تھا، جیسے ہی میں نے توحید کی بات کی، کیونکہ تعلیمات تو ملتی جلتی ہے نا کرسچن سے ہماری، جھگڑا تو حضرت عیسیٰ کو اللہ ماننے کا ہے، اللہ کا بیٹا ماننے کا. جیسے ہی توحید پہ بات آئی تو کہنے لگی اس عورت کے چہرے کے ایکسپریشن سے چینج ہو گئے، عجیب سی نفرت آ گئی اس کے چہرے کے اوپر. تو یہ ہمیشہ ہی اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملتی رہیں گی. توحید بہت بڑی سچائی ہے، اور جو سچ ہے نا وہ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ، اور جب ذکر کیے جاتے ہیں وہ لوگ اس کے علاوہ، یعنی اللہ کے ساتھ کسی دوسروں کے بھی شریک ہوتے ہیں، ان کا تذکرہ ہوتا ہے کفار مکہ کے سامنے، اذا هم يستبشرون، تب وہ خوش ہو جاتے ہیں. قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ انت تحکم بین عبادک فیما كانوا فیہ یختلفون. کہہ دیجئے کہ اے اللہ پیدا کرنے والے آسمانوں اور زمین کے، جاننے والے غیب کے اور حاضر کے، تو ہی فیصلہ کرے گا درمیان اپنے بندوں کے اس میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. حق کے معاملے میں فیصلہ ہو، دینی معاملات میں فیصلہ ہو، کوئی بھی فیصلے ہوں، اصل میں اٹل فیصلے تو آخرت میں ہی ہوں گے. دنیا میں فیصلے ہوتے ہیں، قاضی بھی فیصلہ کرتا ہے، ظاہر پہ وہ غلط فیصلہ کر دے گا. حتیٰ کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ قاضی کو پتہ ہو کہ جو میرے سامنے مجرم آیا ہے یہ غلط کہہ رہا ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ غلط ہے، یہ غلط کہہ رہا ہے، لیکن وہ ظاہر میں جو ثبوت پیش کرے گا فیصلہ اس کی بنیاد پر ہی کرا جائے گا. یہ اصول ہے ہمارے مذہب میں. تو اصل جو فیصلے ہوں گے وہ پھر کب ہوں گے؟ آخرت میں ہی ہونے. وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور اگر بے شک وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، یعنی مشرکین مراد ہیں، تو جنہوں نے ظلم کیا جو زمین میں سارے کا سارا اور اسی کی مانند ہو، اس کے ساتھ البتہ وہ فدیہ دے دے اس کو برے عذاب سے بچنے کے لیے قیامت کے دن. اب یہاں لکھا ہوا نہیں، یہ قبول نہیں کیا جائے گا. کبھی کبھی اللہ رب العزت کچھ بات کہتے ہیں، یہ قرآن میں آپ کو اسلوب نظر آ جائے گا، اور کچھ حصہ اسی بات کے انداز کے اندر چھپا ہوتا ہے. ولو آ گیا نا، اور اگر چاہ ایک شرط آ گئی، جواب شرط نہیں کہ پھر ہوگا کیا؟ قبول نہ کیا جائے گا. ہوگا یہ اگر توبہ کیے بغیر مر گئے. شرک کی حالت میں بندہ مر رہا ہے، توبہ نہیں کی، اسی شرک پہ ڈھٹائی سے گیا ہے، تو پھر یہ معاملہ ہوگا. ادروائز اگر توبہ کر لیتا ہے یا ندامت تھی اس کے دل میں، تو پھر وہ اپنا عذر پیش کر سکتا ہے اللہ کے آگے. وَبَدَا لَهُمْ، اور ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے اللہ کی طرف سے جس
जो ना थे वो हिसाब रखते, अंदाजा रखते, हिसाब नहीं रखते। जैसे हमने सूरह नूर में पढ़ा था नहीं तब मिसाल, कि प्यासा समझता है उसको शराब, दूर देखता है उसे तो शराब नजर आता है, और वो उसकी तरफ चलता रहता है, चलता रहता है, और जब वो शराब के पास पहुंचता है तो वहां अल्लाह को पाता है, और वहां पानी वानी कोई नहीं होता पीने के लिए। मिसाल अल्लाह ने समझाई थी ना। तो शिर्क के साथ लोग नेकियां करते रहते हैं, करते रहते हैं, और फिर जब अल्लाह के पास पहुंचेंगे तो कुछ नहीं पाएंगे। तो मालम यकून यहतसिबुन, वो हिसाब भी नहीं रखते थे, अंदाजा भी नहीं रखते थे कि ये क्या हुआ हमारे साथ। वो बदा लहुम सय्यिआतु मा कसबू, और जाहिर हो जाएंगी इनके लिए सजा इसकी जो उन्होंने कमाई की, और घेर लेगा इनको जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। वैसा मसल इंसान दुर्रुन दआना, और जब छू जाती है इंसान को कोई तकलीफ तो वो पुकारता है हमको। फिर जब हम अता कर देते हैं इसको कोई नेमत अपने पास से, क़ाला इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्म, कहता है कि मैं तो अपने इल्म की बुनियाद पर दिया गया हूँ, मेरी काबिलियत की वजह से मिला है। कोई परेशानी है, मसला है, किसी जगह आप फंसे हुए हैं, निकलने की कोशिश कर रहे हैं, निकल जाते हैं, तो रवैया क्या होता है, ये बिल्कुल तय बात है 100%। पहली चीज हमारी जबान पे यही आती है कि अल्हम्दुलिल्लाह भी आता है, ऐसी बात भी नहीं है, अल्लाह के बहुत सारे नेक बंदे भी हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह भी आता है पहले जबान के, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बचा लिया। लेकिन कहीं ये चीज होती है कि मेरी बहुत एफर्ट्स थी, मैंने बड़ी जान मारी। मेरे खातून के साथ ताल्लुक हुआ इस हवाले से कि मैं उनके साथ बैठी भी थी किसी मौके पे, उनके शौहर का कुछ अरसा पहले इंतकाल हुआ था, तो किसी उनके शौहर किसी दूसरे मुल्क में रहते थे। तो उन्होंने अपने बेटे को फिर किसी तरह से मैनेज करके, कोशिश करके उस मुल्क का वीजा दिलवाया, जो कि बड़ा मुश्किल प्रोसेस होगा मेरे ख्याल से। मैं कंडोलेंस के लिए हम बाद में जब गए तो उस वक्त वो वीजा अप्रूव करवा चुकी थी अपने बेटे का। तो कोई उन्होंने 15 मिनट अपनी कामयाबी हमसे डिस्कस की होगी, 10 से 15 मिनट, और उस सारे वक्त में उनकी जबान पे यही था कि मैंने इससे बात की, मैंने उसको फोन किया, मैंने उससे कहा, और इस तरह देखे मैंने करवा दिया, मैं बहुत परेशान थी, मैं टेंस भी थी, मैं बस देखती रही और सुनती रही, देखती रही सुनती रही। तो कभी हम अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ फॉर्मेलिटी में कह रहे होते हैं, क्योंकि हमारी जबानों पे बातें आ रही होती है अल्हम्दुलिल्लाह। बल हिया फितना, बल्कि वो तो एक आजमाइश है। अल्लाह फरमाते हैं कोई दुआ कबूल हो जाए वो भी आजमाइश है, कोई नेकी करने की तौफीक मिल रही है वो भी एक तरह की आजमाइश है। आजमाया जा रहा है कि अब आप नेकी को कैसे संभालेंगे। कोई मुसीबत दूर होती है वो भी आजमाइश है। वलकिन अक्सर हम, लेकिन अक्सर इनमें से इल्म नहीं रखते। कद काला हल्लदीन मिन क़ब्लिहिम फमा अगना अन्हुम मा कानू यक्सिबून। तहकी कहा था उसको इन लोगों ने जो इनसे पहले थे, तो ना काम आया इनको जो थे वो कमाई करते। यानी कोई भी नेमत अल्लाह से नहीं बचा सकती। ऊपर एक नेमत की बात है ना, खव्वल ना हो नियमत मिन्ना, के हम उसे जो उसकी मुश्किल है उसको हटा के उसे नेमत में बदल देते हैं। तो ये वाली बात कि दुनिया में मिलने वाली नेमतें टेस्ट हैं, जो नेमतें मिली हैं अल्लाह का फजल है, खुद का कमाल नहीं, ये एक आजमाइश होती है। और इस आजमाइश के बारे में लोगों को पता होता है। जो इसको इसके हवाले से नहीं सोचते, अपने रद्द अमल को नहीं बदलते, तो उनको कुछ 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 काम नहीं आती। कोई अल्लाह की नेमत भी फिर बंदे को, जब वो अल्लाह की नाफरमानी करे, नहीं बचा सकती। पास आबाहुम सय्यिआतु मा कसबू, तो पहुंची इनको सजाएं जो उन्होंने कमाई, और वो लोग जिन्होंने जुल्म किया इन लोगों में से अनकरीब पहुंचेंगी इनको सजाएं जो उन्होंने कमाई। तो पिछले लोग कौमें, मसलन कारून वगैरह, ये कानून ने कहा था ना कि उती तुम अलाल इल्म, मुझे तो खजाने मेरे इल्म की बुनियाद पे दिए गए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत मिसाल दे रहे हैं, कुफार मक्का से कंपेयर कर रहे हैं कि जो पिछले लोगों ने किया उनको उनकी जजाएं मिल गई, सजाएं मिल गई, और वल्लदीना ज़लमू, और ये जो कुफार मक्का कर रहे हैं ये भी तो नेमत, कुफरान नेमत कर रहे हैं ना। तो इनको भी, इनका भी मामला क्या है कि ये इनको भी मिलेगा जो ये कमा रहे हैं। वमा हम भी मुअज्जिज़ीन, और नहीं वो आजिज करने वाले। अवलम यअलमू अन्नल्लाह यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर, क्या वो जानते नहीं कि बेशक अल्लाह ताला कुशादा कर देता है रिस्क को जिसके लिए चाहता है, और अंदाजे से देता है। बेशक इसमें अलबत्ता निशानी है लोगों के लिए जो ईमान रखते हो। तो पीछे नेमत की बात हुई, नेमत के साथ ये चीज बता दी गई कि अब आजमाइश का दूसरा तरीका क्या है, कि नेमत ना मिले हो या कदर के साथ मिले, अंदाजे के साथ मिले। तो ये अल्लाह के रिस्क, अल्लाह के हकीम होने की वजह से, उसकी हिकमत पे मुहित है ये चीज, कि वो जिसको चाहता है अंदाजे से देता है। हमने एक माकूल है सुना होगा कि गंजे को नाखून नहीं दिए, गंजे को नाखून दे दे अल्लाह तो गंजा सर खुजा खुजा के अपने आप को जख्मी कर ले। तो हमारे साथ बहुत सारी चीजों में ये मामला होता है। हम देखते हैं पॉलिटिशियंस को और हम आराम से बातें बना देते हैं कि ये इतना बड़ा सजा, इतनी बड़ी गुनाह कर रहे हैं, और हमें नहीं पता कि अल्लाह ने हमें बचाया हुआ है। शायद हम अंदर से उस पॉलिटिशियन से भी ज्यादा करप्ट हैं। अगर हमें अल्लाह पावर में ले आता तो शायद हम इससे भी बड़ी बड़ी गलतियां करते। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो सबको जानते हैं। तो अगर कोई चीज हमें नहीं मिल रही, हमारी कोई दुआ स्पेशली कबूल नहीं हो रही है, हम बेसब्रे होने लगते हैं, दैट इज नॉट द राइट टाइम फॉर दैट दुआ कि वो कबूल हो जाए। उसमें हमारे लिए कोई अपनी जात के लिए डैमेज होता है।
ہمیں اللہ کی ذات پہ اصل میں مکمل بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ جو کرے گا میرے حق میں بہتر کرے گا، لیکن دعائیں مانگنی چاہیے پورے کانفیڈنس کے ساتھ. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جب دل چاہے قبول کر لے، جب میرے حق میں بہتر ہو قبول کر لے. نہیں، دعا تو آپ پورے کانفیڈنس سے مانگے. کیونکہ بخاری میں اللہ کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے. وہ حالات بھی بدل سکتا ہے، وہ اس وقت کو بھی بہتر کر سکتا ہے جس وقت ہم مانگ رہے ہیں. یہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے. دنیا کا کارخانہ ایسے ہی چلتا ہے. تو دعا کانفیڈنس کے ساتھ مانگے، پورے بھروسے کے ساتھ، اور بالکل چھوٹے بچوں کی طرح ضد کر کے مانگے. لیکن اس چیز کا خیال رکھے کہ قبول نہیں ہو رہی تو اس کے پیچھے کوئی میری ہی بھلائی ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. اچھا، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، آیت نمبر 52 میں، کہ اس میں نشانی ہے. کس چیز میں؟ کہ اللہ کسی پر رزق کشادہ کرتا ہے، کسی پر اندازے سے دیتا ہے. کچھ بہت ذہین ہوتے ہیں، ایک کلاس میں 10-15 بچے اسٹوڈنٹ ہیں، 5-7 بہت ذہین ہیں. جو بہت ذہین ہے وہ بہت کم کما رہے ہیں. اور جو بالکل ڈفر ہوتے ہیں، کچھ اللہ حالات ایسے بناتا ہے وہ لاکھوں کما رہے ہوتے ہیں. یہ ایک نشانی ہے. اگر دنیا میں جیسے ہم یونیورس کو دیکھتے ہیں، فزکس کے کچھ لاز ہیں، یونیورس اس پہ چل رہی ہوتی ہے. لیکن آپ بہت ساری ایسی چیزوں کو دیکھیں گے جو لا کو فالو نہیں کرتے، جو اپنا ڈیسیجن لیتی ہیں خود. لائٹ کا ہی ڈیول نیچر ہے، پارٹیکل میں بھی اور ویو میں بھی ٹریول کرتی ہے. کب پارٹیکل فارم میں ویو ٹریول کرے گی، کب ویو میں، اس کی اپنی مرضی ہے. فزکس کے لا کے اگینسٹ ایک طرح سے چلی جاتی ہے کبھی بھی. یونیورس میں جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے لاز سے الگ چل رہی ہیں چیزیں. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ کوئی ان کو چلا رہا ہے، سیدھی سی بات ہے. اسی طرح اگر ہم یہی چیز دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ساری چیزیں خود بخود ہو جاتی ہیں، تو پھر جو زیادہ ذہین ہے، جس کو اپرچونٹی زیادہ ملی، تو دوسرے بندے نے کو پھر اپرچونٹیز کیوں نہیں ملی؟ ایسا کیا ہو گیا اس کے ساتھ؟ اصولاً تو پلس مائنس ساری چیزیں آگے پیچھے کر کے بہت کچھ ملنا چاہیے تھا. تو اللہ اس فرق کو مینج کرنے کے لیے کسی کو اپرچونٹیز میں ڈفرینس کر دیتے ہیں، کسی کے ساتھ ماحول بدل دیتے ہیں. یعنی کوئی ہے جو ہماری ڈوریاں پکڑے ہوئے ہے. اس میں نشانی ہے لآیات لقوم یؤمنون، ان نشانیاں ہیں لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہوں. آیت نمبر 54 پہ آئیے، بہت پیاری آیت ہے 53. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے میرے بندوں سے، اے میرے بندو، قل کہہ دیجئے اے میرے بندو، وہ لوگوں جنہوں نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر. ظلم کیا؟ اسرفو میں دیکھیے کیا ہوتا ہے. اسراف مالی معاملات میں بھی ہوتا ہے، اسراف جسمانی معاملات میں بھی ہوتا ہے. ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا. اب کھانے میں زیادہ اسراف کر لیا تو جسم کے ساتھ ہم اسراف کر رہے ہیں نا، کہ جسم بیمار ہو جائے گا زیادہ کھائیں گے. تو اسرف علی انفسہم کا معنی کیا ہوتا ہے پھر؟ اس کا اگر ہم معنی نکالیں، یعنی اپنے آپ کو ایسے کاموں سے بچانا جو اپنے لیے نقصان دہ ہو. مال کا معاملہ ہو، جان کا معاملہ ہو، روح آپ کی ڈیمیج ہو رہی ہے. بہت گانے سننے سے ہر وقت دل مشغول ہو جاتا ہے، انسان کی روح ڈیمیج ہوتی ہے بہت زیادہ گانے سننے سے، لغو سننے سے دل پہ غفلت کے پردے آ جاتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو کر دیتا ہے انسان یا کرتا رہا، یا ایمان لانے سے پہلے جو لوگ ہیں وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں، کہ اسرفوا علی انفسہم، کہ جو گناہ کر گزرتے ہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ بخش دے گا. اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. یہ تو خاص کر کے شان نزول یہ بھی کہ جو مسلمان ہوئے تو وہ گھبراتے تھے، جو کفر کے دور میں انہوں نے گناہ کیے، ان کے لیے بھی یہ آیت ہے. لیکن انہ هو الغفور الرحیم، اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے. تو جو ہم میں سے لوگ ہیں جو بار بار بھی کبھی گناہ ہو جاتے ہیں، شیطان کہتا ہے کیا بار بار یہی منہ لے کے اللہ کے سامنے بیٹھ جاتی ہو؟ تم تو ڈرامے باز ہو، تم تو ڈرامہ کرتی ہو. یہ سارا ڈرامہ ہے. ہر طرح کی خیالات دل میں آئیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میری رحمت سے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تو وہ ذات ہے، وہ چاہے گا تو سارے کے سارے گناہ بخش دے گا. ابھی ہم دعا پہ بات کر رہے تھے کہ دعا مانگے پورے بھروسے کے ساتھ. 50 دفعہ بھی ایک گناہ بار بار ہو رہا ہے، بار بار ہو رہا ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کے سامنے پھیل جائے، یا اللہ نہیں مجھے معاف فرمائے، میں مجھ سے نہیں ہو پاتا، میں کوشش کرتی ہوں. دیکھو کوشش ضرور کریں ڈٹائی کے ساتھ. آپ کو پتا ہے کہ چیزیں قبول نہیں ہیں اللہ کی نظر میں. کون سے متکبرین ہیں جو جہنم، جن کے لیے لازم ہے، ایک تو تکبر والوں کے لیے لازم ہے نا. تو شرک کے معاملے میں جو تکبر پہ اڑے ہوئے ہیں، خاص کر کے ان کی بات آتی ہے نا قرآن میں. تکبر ایسی چیز ہے، ڈٹائی، جم جانا، اس سے بچنا چاہیے. باقی یہ کہ اللہ سے رحمت، پوری امید رکھے رحمت سے. اللہ زمین اور آسمان کے درمیان خلا کوئی زمین اور آسمان کے درمیان کا خلا بھی کوئی گناہوں سے بھر دینا، اور وہ اللہ سے سچے دل سے معافی مانگے، اللہ معاف فرما دے. انہو هو الغفور الرحیم، بے شک وہ غفور الرحیم ہے. وانیبوا الی ربکم، اور رجوع کرو اپنے رب کی طرف، توبہ مراد ہے. اور مطیع ہو جاؤ، پلٹنے کے بعد نیک کام بھی کرنا ہے. اناب بھی ہونا چاہیے، اللہ کی طرف پلٹیں بھی بار بار، اور نیک کام کریں بھی. من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے کہ آ جائے تمہارے پاس عذاب اور پھر تم مدد نہ دیے جاؤ. یعنی اللہ کی ناراضگی کے نتیجے میں پھر عذاب بھی آ سکتا ہے اگر ہم یہ روش
क्या ना करें? एक तो अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, दूसरा उससे दुआएं करें, अनीबू तौबा करें बार बार, और असलीम कोशिश भी करें नेकियों की। ऐसे नहीं सिर्फ तौबा पे तकिया लगा लें। हजरत अली कहते हैं तौबा तौबा ये नहीं होती कि जो कोई अस्तगफिरुल्लाह 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 कहते रहे। जैसे हम कहते हैं कि तौबा 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 कहते रहे, तो ये तौबा नहीं होती, ये तो एक कैफियत होती है बस। तो वो दिल से करनी चाहिए तौबा। वत्तबिउ अहसन मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, और पैरवी करो बेहतरीन की जो नाज़िल किया अल्लाह ने तुम्हारी तरफ, तुम्हारे रब जो उतारा गया तुम्हारी रब की तरफ से तुम्हारी तरफ, इससे पहले कि आए तुम्हारे पास अजाब अचानक और तुम शऊर ना रखते हो। तो अल्लाह ने बहुत सारी चीजें नाजिल फरमाई। मुराद मेरी किताबें हैं, इल्हामी किताबें, और बेहतरीन किताब फिर क्या है? कुरान है। तो कुरान को थाम लो। ये किस लिए? कि किस चीज में सपोर्ट मिलेगी? अनीबू व असलीमू में। आयत नंबर 54 में अनीबू असलीमू यानी तौबा करना, अल्लाह के साथ जुड़ा रहना। असली मुंह में तर्जुमा फर्मा बरदारी भी होती है ना, कि अल्लाह की फर्मा बरदार बन के रहो। तो फर्मा बरदारी करते रहना, इसके लिए जरूरी है कि कुरान की इत्तिबा करता रहे बंदा, कुरान से जुड़ा रहे, नेक लोगों से जुड़ा रहे, साले लोगों से जुड़ा रहे, तो कभी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होगा। ये तीनों चारों आयत एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि अचानक ही अजाब आता है, मौत अचानक ही आ जाती है। तो ऐसा ना हो अचानक मौत आ जाए और बंदा हक्का बक्का रह जाए कि मैं तो ये सोचती थी कि अच्छा जब मैं जरा थोड़ी हो जाऊंगी बूढ़ी भाई फिर हम पढ़ा करेंगे तहज्जुद। अभी जब मैं थोड़ी सी, अभी तो दिन है, नींद बहुत पक्की होती है। देखा मेरी सास पढ़ती है, मेरी वालदा पढ़ती है, मैं भी थोड़ी बूढ़ी हो जाऊंगी तो पढ़ लूंगी। हो सकता है सास और वालदा की उम्र तो लिखी थी अल्लाह ने, और उनमें ये तब्दीली भी लिखी थी कि बुढ़ापे में आ जाएगी, क्योंकि बुढ़ापे में तो अच्छे अच्छे टूट जाते हैं। लेकिन आप ना टूटे, आप पे वक्त ना आए, दोनों ही चीजें हैं। बहुत सारे बुढ़ापे में नहीं टूट सकते, जो जिंदगी भर काम नहीं किया वो एकदम बुढ़ापे में ढंग से नहीं कर सकते हम काम। ये भी बिल्कुल तय बात है। इबादत, अच्छे काम आपको शेप कर देते हैं, आप उस शेप में चले जाते हैं, फिर उस शेप के हिसाब से चीजें आसान हो जाती हैं। जो नमाजें ही नहीं पढ़ता है उसके लिए कैसे मुमकिन है कि वो बुढ़ापे में, जबकि वुजू करना भी मुश्किल, लंबा बैठना भी मुश्किल, आप उस वक्त बहुत लंबी लंबी नमाजें पढ़ लेंगे? ऐसे तो नहीं हो सकता। तो ये कि अचानक अजाब ना आ जाए, वान तुम ला तशऊरून, और तुम शऊर भी ना रखते हो, अन तकूला नफ्सुन, और फिर ये ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट आयत है, और ये ना हो कि कोई नफ्स ये कहे या हसरत अला मा फरतु फी जंबिल्लाह, कि तुम में से फिर कोई ये कह रहा हो कि हाय अफसोस उस पर जो मैंने अल्लाह के हक में कमी की। वह इन कुंत लमिन साखिरीन, और बेशक मैं था अलबत्ता मजाक उड़ाने वालों में। तो मक्की दौर के हवाले से भी रखे इसे जहन में, और हम क्योंकि अपने लिए ज्यादा देखते हैं। औ तकूला, या फिर ये कहे लो अल्लाह हदानी, काश के बेशक अल्लाह मुझे हिदायत देता, अलबत्ता मैं हो जाता तकवे वालों में। दूसरी चीज और क्या हो सकता है? और तकूला ही ना तरल अजाब, या कहे जिस वक्त अजाब देखे, यानी कब्र में कहे, या ये कुफार मक्का है ये मौत का फरिश्ता देखे, या हम अपनी बात कर रहे हैं कि जब हमें कोई ऐसी चीज आगे फेस करनी पड़ जाए तो हम क्या कहें अजाब देख के मरने के बाद? लो अन्न ली कररतन फाकूना मिनल मोहसिनीन, काश कि मेरे लिए एक बार पलटना होता तो मैं नेककारों में से हो जाता। तो ये तीन चार हसरतें हैं जो बंदा करेगा। तो अमल का वक्त आज का दिन है, आज ही से अमल शुरू। और बहुत मुश्किल से अमल शुरू नहीं करना, हल्के से अमल शुरू करें। अपने आप से कमिटमेंट्स बनाएं कि मैंने, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना जो सबसे हल्की है, वो जबान पे जिक्र है। एक कमिटमेंट बंदा अपने आप से कर ले, मैंने जबान को रोक के नहीं रखना, मैंने बस जिक्र करते रहना, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। जिक्र का फायदा क्या होता है? दिल पाक होता है। जिक्र का फायदा क्या होता है? शैतान भागता है। जब शैतान भागता है, दिल से गफलत उतरती है, तो नेकी करना आसान हो जाती है। ये बहुत जबरदस्त एक टैबलेट है, जिसे अगर हम खाना शुरू करें तो इंशाल्लाह ब्लड प्रेशर और हमारा जो डायबिटीज है, जो ब्लड प्रेशर यानी शैतान जोश मारता है ना उनके साथ, और डायबिटीज दिल पे गफलत चढ़ जाती है ना, चीनी चिपक जाती है चीजों के ऊपर। तो ये जो दो कॉमन बीमारी है ना हमारी, रूह की और जिस्म की, इंशाल्लाह दोनों दूर हो जाएंगी। बला कद जाअत का आया थी। अब जवाब ऐसे बंदे को दिया जा रहा है जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट इस्तिकबार किया। कहा क्यों नहीं कि तहकीक आई तेरे पास मेरी आया तो तूने झुटला दिया इनको, और तुमने तकब्बुर किया, वकुंदा मिनल काफिरीन, और तू काफिरों में से था। व यौमल क़ियामति तरा लदीन कदबू अला वुजूहिहिम मुस्वद्दा, और तुम देखोगे कयामत के दिन इन लोगों को जिन्होंने झूठ बोला अल्लाह पर, चेहरे इनके सिया होंगे, मुशरिकीन हो गए ना। अभी हमने देखा है कि झूठ बोलने वाले क्या है, सारी कैटेगरीज आ गई। अलैसा फी जहन्नम मस्वल लिल मुतकब्बिरीन, क्या नहीं है जहन्नम कोई ठिकाना तकब्बुर करने वाले के लिए? देखिए बार बार मैं ये बात मेंशन करती हूँ, मुतकब्बिरीन, तकब्बुर इतनी खतरनाक चीज है। तकब्बुर होता है हक का इनकार, लोगों को हकीर समझना, ये दो चीजें मिलके तकब्बुर बनाती है, दोनों में से एक भी तकब्बुर हो सकती है। तो मुतकब्बिरीन का ठिकाना जहन्नुम है। अब ये मुशरिकीन में से भी मुतकब्बिरीन को सिलेक्ट किया गया, आप ये देख रहे हैं
کہ تکبر کتنی خطرناک چیز ہے. یہ جو بڑائی ہے نا، یہ کبر، یہ اللہ کی چادر ہے. قیامت میں اللہ کو اس کے نیک بندے دیکھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور ایسے دیکھیں گے جیسے تم آج چاند کو دیکھتے ہو، 14ویں کے چاند کو. اتنا حقیقت میں آنکھوں سے ایسے دیکھیں گے. اللہ کے رخ کے اوپر کبریائی کی چادر ہوگی، وہ جب چاہے گا اس کو ہٹا دے گا، جب ہٹائے گا تو سب دیکھیں گے. اور جو کوئی امید رکھتا ہے کہ اللہ سے کوئی ایسے دیکھے، اس کو چاہیے کہ 2 ٹھنڈی نمازوں کی حفاظت کرے، ایک فجر کی نماز اور ایک عصر کی نماز. ان 2 نمازوں کی حفاظت کرے. بخاری میں حدیث ہے ایک سے زیادہ اس حوالے سے. وَيُنَجِّيَ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اور بچا لے گا اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا ساتھ ان کی کامیابی کے. نہیں چھوئے گی ان کو کوئی برائی اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اللہ خالق کل شیء، اور اللہ رب العزت خالق ہے ہر چیز کا، اور وہ ہر چیز پر حافظ ہے، کارساز ہے، یعنی تدبیر بھی کر رہا ہے، پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، وکیل بھی ہے اس پر. لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے لیے خزانے آسمانوں کے اور زمین کے. والذین کفروا بآیات اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا. اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں. قل فغیر اللہ تأمروننی اعبد ایھا الجاہلون، کہہ دیجئے کہ بھلا سوا اللہ کے تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں عبادت کروں، میں کسی اور کی عبادت کروں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت کروں، اے جاہلو. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، البتہ تحقیق وحی کیا آپ کی طرف، وحی کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، طرف ان لوگوں کے جو آپ سے پہلے تھے. کیا وحی کیا گیا؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ البتہ اگر شرک کیا آپ نے، یعنی سب کو اطلاع دی جا رہی ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی یہ بات کہہ رہا ہوں، اور یہ میں نے وہی آپ کی طرف بھی کی ہے اور آپ سے پہلے بھی کی، کہ اگر شرک کیا آپ نے تو البتہ ضرور ہو جائے گا عمل آپ کا. کیسا؟ لَيَحْبِطَنَّ، ضائع ہو جائے گا، اور آپ ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ رب العزت اتنی محبت کرتے ہیں، شرک اتنی خطرناک بیماری ہے، شرک اتنا بڑا کینسر ہے. سوچیں کہ بندے کی ہلاکت ہی ہلاکت. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کے بھی اعمال ضائع ہو جائیں گے اگر آپ نے ایسا کیا. بل اللہ فاعبد، بلکہ اللہ ہی ہے، بس آپ عبادت کیجئے. وکن من الشاکرین، اور ہو جائیے شکر گزاروں میں سے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب، بعد میں ہم بھی. پھر یہ دیکھیے کہ بندہ ساری زندگی نا وہ عمل کرنے کی کوشش کرے جس سے اللہ راضی ہو جائے. ایک ہوتی ہے اللہ کی رضا، یعنی اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی رضا. اللہ کی رضا تو یہ ہے کہ کوئی بندہ شرک نہ کرے، سب اللہ کے بندے بن کے رہیں. ایک اللہ کی خشیت بھی ہوتی ہے. خشیت کیا ہوتی ہے؟ کہ اللہ کسی پہ زبردستی ہدایت نہیں تھوپتا، یہ اللہ کی خشیت ہے. دعائیں جیسے وقت پہ قبول نہیں ہو رہی ہیں، آگے پیچھے جو اس کا مناسب وقت ہے تبھی قبول ہوتی ہیں. ہمارے لیے ان دونوں چیزوں میں کیا ہے؟ ہمارے لیے بھی یہ 2 ہی چیزیں. نمبر 1، ساری زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگے رہیں، ٹوٹا پھوٹا بھاگ کے دوڑ کے اپنے آپ کو گھسٹ کے اللہ کی راہ پہ لگے رہیں. غلطی ہو رہی ہے معافی مانگ لیں، پلٹ جائیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگیں. اور دوسری چیز خشیت، اللہ کی خشیت میں بھروسہ رکھیں. اللہ کی خشیت میں بھروسہ رکھیں. کوئی جسم کو تکلیف دینے والا فیصلہ آ گیا، بیماری لگ گئی ہے، کوئی روح کو تکلیف دینے والا فیصلہ آ گیا آسمان سے، اللہ کی خشیت ہے، میری اس میں بھلائی ہے، اللہ نے میرے لیے اس میں بھلائی رکھی ہے. وما قدر اللہ حق قدری، اور نہیں انہوں نے قدر کی اللہ کی جیسے کہ اس کی قدر کا حق تھا. اور زمین ساری کی ساری اس کی مٹھی میں ہوگی. قدر نہ کرنا یعنی اللہ کے ساتھ شریک کر لیا کسی کو. جس طرح کی کوئی ہستی ہے ہم اس کا ویسے ہی قدر کرتے ہیں نا. ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. مراد اس سے کیا ہوتی ہے کہ میں اگر آپ کو کہوں کہ یہ اسپرنگ واٹر ہے، یہ میں فلاں جگہ گئی تھی، میں پاکستان میں کوئی پہاڑی مقام پہ گئی تھی، وہاں یہ برف کا پانی پگھل کے آ رہا تھا، یہ وہاں کا پانی ہے. آپ اس کی پھر قدر کریں گے، آپ اسے پھینک نہیں دیں گے، آپ اسے ہاتھ نہیں دھو لیں گے، آپ اسے پیئیں گے، آپ اسے سنبھال سنبھال کے پیئیں گے، جیسے ہم زمزم کی قدر کرتے ہیں. تو وہاں قدر اللہ کا قدری، جو اللہ کی قدر تھی لوگوں نے وہ قدر نہیں کی. ہم نے بھی فور گرانٹیڈ لیا ہوا نعمتوں کو، ہم بھی اللہ کا ویسا شکر نہیں ادا کرتے. اللہ رب العزت اپنی قدرت بتا رہے ہیں. اور زمین ساری کی ساری اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن، اور آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے اس کے دائیں ہاتھ میں. پاک ہے وہ اور بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. اللہ کا دایاں ہاتھ ہے ایک، تو ہمیں یہ پتا چلا اللہ کو دائیں جانب پسند بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم طہارت حاصل کرنا ہو، کنگھی کرنا ہو، مسواک کرنا ہو، دائیں جانب سے ابتدا کرتے تھے. پھر دائیں اصحاب الیمین، دائیں طرف والے، یہ بھی ہمیں پتا ہے. تو یہ عزت کا مقام ہوتا ہے. دائیں، دائیں کی بات ہو رہی ہے. اور متشابہات میں اللہ ہی جانتا ہے. اب ہمارے ذہن میں فوراً ہمارے جیسا ہاتھ آ گیا، تو اللہ جانتا ہے اللہ کے دائیں ہاتھ کیسا ہوگا. ونفخ فی الصور، اور پھونک مار دی جائے گی سور میں، بس بے ہوش ہو جائیں گے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، مگر جس کو اللہ چاہے. تو کہا جاتا ہے اسرافیل علیہ السلام جو ہے وہ بے ہوش نہیں ہوں گے. یہ بھی کہا جاتا ہے حضرت موسیٰ کیونکہ ایک دفعہ بے ہوش ہو چکے تھے، تو ان کی وہ بے ہوشی کو کمپنسیٹ کیا جائے گا کہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو وہ بے ہوش نہیں ہوں گے. بہرحال واللہ عالم. اللہ نے کہا الا من شاء اللہ، جس کو چاہے اللہ وہ بے ہوش نہیں ہوگا، باقی سب
पहले सूर पे तो सब आपको पता है ना खत्म हो जाएगा। सुम्मा नुफिखा फीही उखरा, फिर फूंका जाएगा सूर में दूसरी मर्तबा। तो दफतन वो खड़े हो जाएंगे और देख रहे होंगे। वशरकतिल अर्दु बिनूरि रब्बिहा, और चमक उठेगी जमीन अपके रब के नूर से। जमीन ऐसी नहीं होगी ऊंची नीची टेढ़ी मेढ़ी, मैदे की एक चपटी रोटी की तरह हो जाएगी, बिल्कुल सफेद। और चमक होगी रोटी उसमें जमीन में। और चमक उठेगी जमीन अपने रब के नूर से, और रख दी जाएगी किताब, यानी अमाल नामे ले आए जाएंगे। वजी अबिन नबीयीन व शुहदा, और लाए जाएंगे अंबिया और गवाह। गवाह किरामन कातिबैन भी हो सकते हैं, फरिश्ते हैं, उम्मत मोहम्मदी है, पैगंबर होंगे, सब एक दूसरे की गवाही के लिए मौजूद होंगे। वक़ुदिया बैनहुम, और फैसला कर दिया जाएगा इनके दरमियान हक के साथ, और वो जुल्म ना किए जाएंगे। ववुफ़ियत कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत, ये जो पीछे मैंने आयत पढ़ी है ना 69 और 68, माशाल्लाह ये दो आयत ऐसी है जैसे पूरे क़यामत का मंजर समेट दिया गया है, कि आसमान लिपटा हुआ होगा अल्लाह के हाथ में। और आई 670 पे आई है, वो फियत कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत, तो पूरा पूरा दिया जाएगा हर शख्स को जिसने अमल किया, और वो ज्यादा जानता है जो कुछ वो करते हैं। वसीक़ अल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा, जुमर इसी के नाम पर है। और हाँके जाएंगे वो लोग जिन्होंने इनकार किया जहन्नुम की तरफ, गिरोह दर गिरोह, जुमरा ग्रोह दर ग्रोह, हत्ता इज़ा जाऊहा, यहाँ तक कि जब वो आ जाएंगे जहन्नुम के पास, फुतिहत अबवाबुहा, खोले जाएंगे इसके लिए इसके दरवाजे। वक़ाल लहुम खज़नतुहा, और जहन्नुम के कारिंदे कहेंगे, अलम यातिकुम रसूलुम मिनकुम यतलूना अलैकुम आयाति रब्बिकुम व युनज़िरूनकुम लिक़ाअ यौमिकुम हाज़ा, कि तुम्हारे पास कोई रसूल नहीं है तुम में से जो पढ़ते तुम पर तुम्हारे रब की आयत, और डराते तुमको इस दिन की मुलाकात से। यानी तुम्हें पता नहीं था, कि तुम्हें किसने नहीं बताया कि ये इतनी बड़ी बला खड़ी है आगे, इसमें तुम गिर सकते हो, कयामत के दिन की तैयारी कर लो, तुम्हें किसी ने नहीं बताया। मतलब उन्हें हैरत होगी कि कैसे ये लोग जानते बूझते किस तरह से आ गए इधर। तो ये जानबूझ के तो कोई नहीं आ सकता जहन्नुम की तरफ। तो क्या कोई आया नहीं था तुम्हें बताने वाला? मतलब जिसको जहन्नुम के बारे में पता चल जाए, तो क्योंकि वो तो जहन्नुम के दरोगा है, तो उन्हें पता है इधर तो कोई भी नहीं आना चाहेगा। तो वो कहेंगे कि शायद कोई इनके पास आया नहीं, तो पूछेंगे कोई आया नहीं तुम्हारे पास? कालू बला, जहन्नुमी कहेंगे हाँ आया था, क्यों नहीं आया था, वलाकिन हक्कत कलिमतुल अज़ाबि अलल काफिरीन, लेकिन हक हो गई बात अजाब की काफिरों पर। क़ील उदखुलू अबवाब जहन्नम खालिदीन फीहा, कहा जाएगा कि दाखिल हो जाए दरवाजों में जहन्नुम के। खालिदीन फीहा, परमानेंट रेजिडेंस, हमेशा रहने वाले उसमें। पक्का ग्रीन कार्ड मिल गया, यहाँ से कोई नहीं निकालेगा, निकलना चाहोगे भी तो नहीं निकलेगा। फबी समस्वल मुतकब्बिरीन, अगर आगे देखिए फिर तकब्बुर आ गया, तो कितना बुरा ठिकाना है तकब्बुर करने वालों के लिए। वसीक़ल लज़ीना तक़व रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा, और चलाए जाएंगे वो लोग जिन्होंने तकवा इख्तियार किया अपने रब से, जन्नत की तरफ ग्रोह दर ग्रोह। हत्ता इज़ा जाऊहा फुतिहत अबवाबुहा, जब वो आ जाएंगे इसके पास और खोल दिए जाएंगे इसके दरवाजे, जन्नत के दरवाजे पहले ही खुले होंगे, ताकि जन्नतियों को वेट ना करना पड़े। जन्नत के दरवाजे पहले ही खुले होंगे, और इतने बड़े दरवाजे कि अव्वल और आखिर सारे इंसान जमा हो जाए, और सब बराबर में एक दूसरे के हाथ पकड़ के एक एक सफ बना ले, कतार नहीं सफ, तब सारे के सारे दाखिल हो सकते हैं। इतने बड़े बड़े दरवाजे आपने देखा होगा, जो बंगले वगैरह होते हैं ऊंचे बड़े खुले दरवाजे कितने अच्छे लगते हैं ना, तो इतने बड़े बड़े दरवाजे होंगे। वक़ाल लहुम खज़नतुहा, आप जन्नतियों से भी जन्नत के दारोगा कहेंगे, सलामुन अलैकुम, सलामती हो तुम पर, तुम वेल डन, जबरदस्त, लकी पीपल, ब्रावो, शाबाश, सब जमा कर लें इसमें। तुम जबरदस्त हो, मुबारक हो तुम्हें। फदखुलूहा दाखिलीन, दाखिल हो जाओ इसमें, परमानेंट रेजिडेंस। खालिदीन, हाँ खुल्द क्या होता है, हमेशा रहना, कोई नहीं निकालेगा यहाँ से। वक़ालू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वादा, और वो कहेंगे सब तारीफ अल्लाह के लिए, जन्नती ये कहेंगे जिसने सच किया हमसे वादा अपना, और वारिस बना दिया हमको जन्नत का। नतबव्वअ मिनल जन्नति हैसु नशा, हम जगह बना सकते हैं जन्नत में जहां हम चाहें, यानी जन्नत में कोई रोक टोक नहीं है। मैदान ही मैदान है, जमीन ही जमीन है, मैदान तो नहीं कहना चाहिए, बागात ही बागात है। जहाँ दिल चाहे जो दिल चाहे बनाओ, कोई टोकने वाला नहीं। फनियम अजरुल आलिमीन, तो कितना अच्छा है अजर अमल करने वालों का। किसका? वक्त जाया करने वालों का नहीं, अमल करने वालों का, अमल करने वालों का अजर है। मतरल मलाइकत हाफीन मिन हौलिल अर्श, अब ये फैसले हो गए जन्नतियों के जहन्नुमियों के। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे, तुम देखोगे फरिश्तों के हल्का बनाए हुए होंगे आसपास अर्श के, तस्बीह कर रहे होंगे अपने रब के हमद के साथ। वक़ुदिया बैनहुम बिल हक़, और फैसला कर दिया जाएगा इनके दरमियान हक के साथ। वक़ील अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मामला निमट गया, जन्नती जन्नती में पहुंच गए, जन्नत में पहुंच गए, जहन्नुमी जहन्नुम में पहुंच गए। आसमान जमीन लपेट के उनको खत्म कर दिया गया है, क्योंकि वो बने थे आजमाइश के लिए। आजमाइश पूरी हो गई, हिसाब किताब वो पूरा हो गया। अब सिर्फ जन्नत है, जहन्नुम है, दो परमानेंट रेजिडेंस है, बड़ी बड़ी दो कॉलोनीज है जो हमेशा रहने वाली है। वकील अल्हम्द, और आखिर में कह दिया जाएगा तमाम तारीफ अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए जो सारे जहान का रब है। ये फैसला है अल्लाह का, अल्लाह हमें जन्नत वालों में से बनाया। आखिर में दो ही ग्रोह बच रहे, अगर जब तीन ग्रोह होंगे हिसाब किताब के वक्त,
साबिकून अल-अव्वलून अस्हाबुल यमीन और अस्हाबुल शिमाल, लेकिन साबिकून अल-अव्वलून और अस्हाबुल यमीन फिर जन्नतों की तरफ चले जाएंगे। सूरह मोमिन देखेंगे हम, इसका दूसरा नाम भी है, सूरह गाफिर भी है इसका नाम। यहाँ से हवामीम शुरू हो रही है, हामीम की जमा है। इसके बाद कुछ सूरतें आएंगी जो हामीम से शुरू होंगी, और आमतौर पर कुरान की सदाकत पे इन पे ज्यादा बात की जाएगी। और इसमें मक्की सूरह है, ये वाली मक्की सूरह है सूरह मोमिन। और इसमें है क्या, इन हवामीम को कहा जाता है कुरान का फल है ये, यानी किसी चीज का फ्रूट होता है ना। जैसे सूरह यासीन को कुरान का दिल कह देते हैं, सूरह रहमान को कुरान की उरूसा कहते हैं। उरूसा का कुरान दूल्हा, और सूरह रहमान दुल्हन नहीं है। उरूसा तैयार होती है ना, दुल्हन तैयार हुई हुई होती है। तो सूरह रहमान के अल्फाज, उसके अंदाज, उसके तर्ज बयां में एक बहुत ज्यादा खूबसूरती है, तो उसको कुरान की दुल्हन कहा जाता है। तो इसी तरह हवा मीम को कहा जाता है कुरान का फल है। तो अगर आप फल, फल में पौधे की सारी सलाहियतें होती है ना, तो अगर आपको कुरान की सारी तालीमात का निचोड़ देखना है तो आप ये हवामीम पढ़ लीजिए। शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम तंजीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। नाजिल करना है किताब का अल्लाह की तरफ से जो जबरदस्त इल्म वाला है, जो बख्शने वाला है गुनाहों को और कबूल करने वाला है तौबा का, सख्त सजा देने वाला है। गाफिर दम, तौबा कर लें तो कबूल हो जाएगा, वकाबिल तौब, कबूल हो गई। अगर नहीं करते तो शदीदुल इक़ाब, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। तौबा कर ले अल्लाह कबूल कर लेगा, लेकिन नहीं तौबा करते तो शदीदुल इक़ाब, फिर सजा झेलनी पड़ेगी। दित तौल, बड़े फजल वाला है। ला इलाहा इल्लहू, नहीं कोई इलाह मगर वही, इसी की तरफ लौटना है। तो बंदा तौबा नहीं करता तो भी क्या करेगा, लौटना तो अल्लाह की तरफ ही है, तो फिर क्या करे, तौबा कर लेना फिर। मा ये जादिलु फी आयातिल्लाहि इल्लल्लज़ीना कफरू, नहीं झगड़ते अल्लाह की आयत में मगर वो लोग जिन्होंने कुफर किया। तो ना धोखे में डाले तुझको उनका चलना फिरना जमीन में, उनका चलना फिरना मुल्कों मुल्कों में। तो अक्सरियत ही ऐसी है जो अल्लाह की नाफरमान है, चाहे हम मुसलमान हो या मुसलमानों से कहीं कुछ और हो, लेकिन जमीन में तरक्कियां कर रहे हैं, उरूज कर रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं, एक तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कुफारे मक्का के हवाले से, कि जो जो फाइनेंशियल कब्जा करके बैठे हुए बड़े बड़े सरदार, जो एक तरह से पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं, जिन्होंने कब्जा भी किया हुआ है, जो मनी आती है वहां पे, जो तिजारतें भी कर रहे हैं, ये तो फल फूल रहे हैं और मुसलमानों को जलते हुए कोलों पे लिटा रहे हैं। तो तुम इनसे हैरान नहीं हो ना, हम भी मुतासिर होते हैं, हम गोरों से कितने मुतासिर हैं। इसीलिए तरक्की याफ्ता कौम है, हर तरक्की याफ्ता कौम से सब मुतासिर होते हैं। वजह क्या होती है, हमें लगता है दे आर बेस्ट। इसीलिए तो कुरान से जुड़े रहना जरूरी है, क्योंकि जब हमें उनकी दूसरी बातें अच्छी लगेंगी तो हमका उन्हें LBGT क्या चीज है ये, हमें लेस्बियंस गे हमें वो भी नॉर्मल लगने लगेंगे, जो कि हमारे बच्चों को, हमारी नस्लों को नॉर्मल लगते हैं। कि क्या मसला है, लड़का लड़के के साथ है आपको तो कुछ नहीं कर रहा ना, लड़की लड़की के साथ है आपको तो कुछ नहीं कर रहा। उनके कल्चर, ये गलत चीजें अच्छी लगने लगेंगी, फिर एक वक्त आएगा उनका मजहब भी अच्छा लगने लगेगा। तो इस चीज को, इस फहम के साथ इसीलिए जीना होता है। कुरान से ताल्लुक इसलिए जरूरी है क्योंकि कुरान फुरकान है, बताता है कि ये सही है और ये गलत है, चाहे हालात कुछ भी हों। कद्दबत क़ब्लहुम क़ौम नूह वल अहज़ाब, झुटलाया इनसे पहले कौम ने और ग्रोहों ने इनके बाद। वहम्मा, मतलब जो पिछली कौमें थी, अहले मक्का की बात कही जा रही कि अहले मक्का से पहले बहुत सारी कौमें झुटला चुकी। वहम्मत कुल्लु उम्मतिन बिरसूलिहिम, और इरादा किया हर उम्मत ने अपने रसूल के साथ कि वो पकड़ लें इसको, यानी कैद कर लें या कत्ल कर डालें। और उन्होंने झगड़ा किया साथ बातिल के, ताकि नीचे दिखाएं साथ इसके हक को, यानी अल्लाह के कलाम को, तौहीद को या नबी को नीचे दिखाएं। फखजत हूँ, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाने, तो मैंने क्या किया, मैंने पकड़ लिया उनको। फकैफ कान इक़ाब, तो कैसी थी मेरी सजा। मतलब ये इतनी तरक्कियां कर रहे हैं, अगर ये लोग अल्लाह की नाफरमानी के साथ जी रहे हैं। खानदान में कभी कोई ऐसा बंदा होता है जो बहुत ही फसादी होता है, लेकिन हम देखते हैं, कभी हम भी उस जगह हो सकते हैं कि हम भी फसादी हैं, लेकिन हम बिल्कुल अय्याशी में रह रहे हैं, ऐशो इशरत में रह रहे हैं। तो अल्लाह की तरफ से ढील होती है, इससे मुतासिर ना हो बंदा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाए फखजत हूँ, मैंने पकड़ लिया उनको। फकैफ कान इक़ाब, तो कैसी थी मेरी सजा। वकदालिक हक़्क़त कलिमतु रब्बिका अलल लज़ीना कफ़रू अन्नहुम अस्हाबुन नार, और इसी तरह चस्पा हो गई तेरे रब की बात इन लोगों पर जिन्होंने कुफ्र किया कि यकीनन वो आग वाले हैं। अल्लज़ीना यहमिलून, और वो फरिश्ते जो उठाते हैं अर्श, अर्श वमन हौलहु, जो इसके इर्द गिर्द है, युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम, तस्बीह करते हैं अपने रब की हमद के साथ। अब ये हामिलीन अर्श हैं, 8 फरिश्ते हैं, ये अल्लाह से सबसे करीब फरिश्ते हैं ना, क्योंकि इससे करीब तो कोई फरिश्ता है ही नहीं ना, वो अल्लाह का अर्श उठाए हुए हैं और अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि एक तो वो ग्रोह है जो तुक़ल्लिबुहुम फिल बिलाद, जो घूम फिर रहे हैं, तरक्कियां कर रहे हैं, उनके बारे में एक चीज है, अंजाम क्या है। और एक माशरे के ऐसे लोग हैं, अब उस वक्त मक्का को जहन में ले आए या वैसे भी, जो कोई, जिनकी कोई सह नहीं है माशरे में, कोई माल वगैरह नहीं है, लेकिन ईमान वाले हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं, पैसा आता है जक़ात में निकालते हैं, लोगों की मदद करते हैं, कोई उनके पास कामयाबी नजर नहीं आती दुनियावी तौर पे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके हवाले से भी ये बात बता रहे हैं कि जो फरिश्ते अल्लाह के अर्श को उठाए हुए हैं, उसके इर्द गिर्द तस्बीह करते हैं अपने रब की हमद के साथ, युमिनून बिही, अल्लाह पर, अल्लाह को मानते हैं। वो क्या करते हैं, वही यस्तगफिरून लिल्लज़ीना आमनू, ये उनका अजर है फिर, कि वो इस्तिगफार करते हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाए, यानी इतना बड़ा अजर उन्हें दिया जा रहा है।
हम जाहिर परस्त है ना, दुनिया को देख के चीजें देखते हैं। वहां जो ईमान वाले हैं, जिन पर जुल्म हो रहे हैं, उनके बारे में फरिश्ते जो सबसे टॉप फरिश्ते एक तरह से कुर्बत के हिसाब से, अल्लाह की कुर्बत जो है उनकी उस हिसाब से, तो वो तो उन लोगों के लिए बख्शिश तलब कर रहे हैं। रब्बना वसिअत कुल्ल शैइन रहमतन व इल्मा, दुआ क्या कर रहे हैं फरिश्ते कि हमारे रब तू छाया हुआ है हर चीज पर रहमत के एतबार से और इल्म के एतबार से। फगफिर लिल्लज़ीना ताबूत, बस बख्श दे इन लोगों को जिन्होंने तौबा की, वत्तबअु सबीलक, और पैरवी की तेरे रास्ते की, वक़िहिम अज़ाबल जहीम, और बचा इनको जहन्नुम के अजाब से। रब्बना वअदखिलहुम जन्नाति अदनिन अल्लती वअदतहुम मन सलह मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम, ए रब हमारे, और दाखिल कर इनको हमेशगी के बागात में, वो जो वादा किया तूने इनसे, और जो कोई नेक हो इनके आबा अजदाद में से, इनकी बीवियों में से, इनकी बच्चों में से। इन्नका अंतल अजीजुल हकीम, बेशक तू ही गालिब हिकमत वाला है। अब ये देखिए कि वो सिर्फ उन ईमान वालों के लिए दुआ नहीं कर रहे हैं, उनके लिए बख्शिश नहीं मांग रहे हैं, उनकी फैमिली में इर्द गिर्द जो भी अल्लाह के कलाम के साथ जुड़ा हुआ है, ये कहें कि जो नेक काम कर रहा है उनके लिए भी दुआएं मांग रहे हैं। वक़ीहिमुस सय्यिआत, और बचा इनको सजाइयों सजाओं से, और इसमें बुराइयां भी आती हैं सय्यात में। वमन तकी सय्याति फी यौमइज़िन फ़क़द रहीमता, और जिसको तूने बचा लिया सजाओं से उस दिन, तो तहकीक तूने रहम किया। वदालिका हुवल फौजुल अज़ीम, और यही वो कामयाबी है बड़ी। बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया वो बुलाए जाएंगे, अलबत्ता वो बुलाए जाएंगे, अलबत्ता बेजारी, लमक़तुल्लाहि अकबर मिन मक़तिकुम अनफुसकुम, ये ज्यादा बड़ी है तुम्हारे गुस्से से अपने नफ्सों पर। इस्तुदअूना इलल ईमान, जब तुम बुलाए जाते थे ईमान की तरफ तो तुम कुफ्र करते थे। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आयत में ये बता रहे हैं, जब किसी को अल्लाह की तरफ बुलाया जाए और वो अगला इनकार कर दे, तो उनका इनकार करना निहायत ही नापसंदीदा बात है अल्लाह के नजदीक। एक तो वो खुद बंदा नापसंद कर रहा है ना कि मैं तौहीद की तरफ नहीं जाना चाहता, एक तो ये उसका इनकार है, ये उसका गुस्सा है। तो उसके इस गुस्से के ऊपर अल्लाह का जो गुस्सा है वो बहुत बड़ा है, लमक्तुल्लाहि अकबर, बड़ा है। कालू रब्बना मत्तना स्नतैनी, अब मर गए वो ऐसे लोग, आगे जाके उनका हाल क्या होगा। वो कहेंगे है हमारे रब, तूने मौत दी हमको दोबारा, और तूने जिंदगी बख्शी हमको दो बार, यानी जिंदा होने से पहले हम मरे हुए हैं ना, मौत दी, रूहों को जिंदा किया, अहदे अलस दिया, फिर सुला दिया, एक मौत आ गई हमें, फिर दोबारा जिंदा हुए, हम दुनिया में आए, हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं। और दुनिया में आके फिर हमें मौत आई, और फिर हम दोबारा उठाए गए, एक तो इस तरीके से भी बयान होता है। और दूसरा क्या है, हम दुनिया में पैदा हुए, हमें मौत दी गई, मौत के बाद हमें फिर दोबारा जिंदा किया आखिरत के लिए। तो यहाँ दो बार की बात हो रही है कि हम दुनिया में आए, मरे, फिर हमने तूने दोबारा उठाया, क्योंकि आखिरत के इनकार ही है ना, तो खास करके वो इकरार कर रहे हैं कि तूने हमें दो दफा मौत दी, तूने हमें दो दफा जिंदा किया। फातरफने बिदुनूबिना, और एतराफ कर लिया हमने अपने गुनाहों को, तो गुनाहों का, तो क्या जहन्नुम से निकलने का कोई रास्ता है। फालिला खुरूज बिन सबील, ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم, अब वही बात आगे जो पिछली आयत में थी, ये जहन्नुम और ना निकलने का रास्ता कुछ नहीं मिल सकता, जहन्नुम ही है। इसलिए कि बेशक जब पुकारा गया अल्लाह की तरफ, अकेले इसी की तरफ, वहदहू कफरतुम, तुमने कफर किया, कुफ्र किया। व इन युशरक बिही तुमिनु, और अगर शिरक किया गया साथ इसके तो तुम मान गए। फहकुम फल हुक्मु लिल्लाहिल अलिय्यिल कबीर, पर फैसला अल्लाह ही के लिए जो बुलंद बुलंद है और बहुत बड़ा है। ये बहुत इंजार वाली आयत है, जो कब्र परस्ती करते हैं, बहुत डराने वाली आयत है, बहुत ज्यादा डराने वाली आयत है। ये इस चीज के साथ, इस पूरा जो बीच में मकालमा था उसको ब्रैकेट किया गया है इस चीज के साथ, आप देखें। ये एक बहुत खतरनाक चीज है, बंदा अल्लाह के सिवा किसी दूसरे की तरफ देख ले कि ये मेरा मसला हल करेगा, नहीं, मसला तो अल्लाह ही हल करेगा, कोई हल नहीं करेगा। हुवल्लज़ी युरीकुम आयाती, और अल्लाह वो ज़ात है जो दिखाता है तुमको अपनी निशानियां, वो उतारता है तुम्हारे लिए आसमान से रिस्क, और नहीं नसीहत पकड़ते मगर वो जो रुजू करने वाले हों। फदुल्लाह मुखलिसीन, बस मांगो अल्लाह से, पुकारो अल्लाह को खालिस करते हुए इसी के लिए दीन को। वलो करिहल काफिरून, और अगरचे नापसंद करे काफिर, वो ही टॉपिक चल रहा है, पुकारने की बात आ गई। दुआ, वदउ, दुआ करना, दुआ सिर्फ अल्लाह से करें। कैसी मत मारी गई है, क्यों अल्लाह के सिवा किसी और के आगे हम खड़े हो जाते हैं हाथ बांध के। हमें ऐसी क्या चीज नजर आती है कब्र में लेटे हुए लोगों के बारे में कि ये हमारे सिफारशी बन जाएंगे, कहाँ लिखा है ये। देखिए अल्लाह क्या कह रहे हैं, पुकारो अल्लाह को मुखलिसीन, खालिस करते हुए उसी के लिए इबादत को। कैसी आयात है। वलो करे अल काफिरून, और अगरचा पसंद करें नापसंद करें काफिर, अल्लाह हमें इस शिर्क से बचाए। हमें नहीं पता कि बंदे की मत मारी जाती है तो उसके साथ क्या होता है। रफी दर्जात, बुलंद दर्जों वाला है, यानी ईमान वालों के दर्जे बुलंद करता है अल्लाह, रफी दर्जात अल्लाह ईमान वालों के दर्जे बुलंद करने वाला है। जुल अर्श, अर्श वाला है। युल्क़ि रूह मिन अमरी, डालता है वही को अपने हुक्म से जिस पर वो चाहता है अपने बंदों में से, ताकि वो खबरदार करे मुलाकात के दिन से। यानी यौम तलाक एक आने वाला है, तलाक जिससे डराए डराते हैं प्रॉफिट, अल्लाह इस हवाले से वही भेजता है, कुरान इसीलिए उतारा गया है, इसका एक मकसद ये भी है। और मुलाकात क्या किसकी होगी, रूह जिस्म से वापस मिल जाएंगी, कि रूह तो इल्लीन या सिज्जीन में चली जाती है, जैसे मिट्टी में मिल जाता है, नया जिस्म बनेगा तो रूहें वापस मिल जाएंगी, फिर आपस में सब एक दूसरे से इकट्ठे हो जाएंगे, हमारे परदादा और ऊपर एंसेस्टर्स और हमारे
हमारी आगे नस्लें जिन्हें हमें पता भी नहीं, देखा भी नहीं, वो सब जमा हो जाएंगे। तो वो मुलाकातें, ईमान वाले आपस में मिलेंगे, उम्मतें मिलेंगी, उम्मत मोहम्मदी, उम्मत मूसा, ये सब उम्मतें मिलेंगी आपस में, पैगंबर आपस में मिलेंगे। तो एक मुलाकात का दिन है। यौम हम बारिजून, जिस दिन वो जाहिर होंगे, ना छुपी होगी अल्लाह पर इनमें से कोई चीज। लिमनिल मुल्कुल यौम, किसके लिए बादशाहत आज के दिन? उस दिन कहा जाएगा क़यामत के दिन, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, अल्लाह ही के लिए जो एक है और जबरदस्त है। अल यौम तुज्ज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत, आज के दिन बदला दिया जाएगा हर नफ्स को जो उसने कमाई की, नहीं जुल्म होगा आज के दिन। इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, बेशक अल्लाह ताला जल्द लेने वाला है हिसाब। वंज़िरहुम यौमल आज़िफ़ति इज़ल क़ुलूबु लदल हनाजिर, और खबरदार करो इनको जो इस दिन से जो करीब आ चुका है, जब दिल हलक में आ जाएंगे, कादिमीन, गम से भरे होंगे। मा लिज़्ज़ालिमीना मिन हमीम वला शफी, नहीं जालिमों के लिए कोई जिगरी दोस्त और ना कोई सिफारशी जिसकी बात मानी जाए। यअलमु ख़ाइनतल अयुनि वमा तुख़फ़ी सुदूर, वो जानता है खयानत निगाहों की और जो छुपाते हैं। अब एकदम से खयानत की बात क्या आ गई? कयामत का मंजर चल रहा है और खयानत, इसका ये मतलब है कि आज तुम्हारे नामा अमाल रिकॉर्ड हो रहे हैं, और उसमें जो तुम आंखें भी किसी की तरफ ऐसे आंखों से भी इशारा करते हो ना, आंखों से भी खयानत करिए, आईब्रोज भी उचकाई हल्की सी, ये सब नामा अमाल में लिखा जाएगा। और तुखफी सुदूर, जो दिल में दूसरों के लिए जलन, बुग़्ज़, हसद, ये चीजें छुपाई हुई है, ये भी लिखी जाएंगी। तो जो कयामत, जो आजिफा आ गया है, दिल यौमल आजिफा जो करीब आ चुका है दिन, उलूब लदल हनाजिर होंगे, गले में आके दिल फंस जाएगा। काजिमीन, जब बहुत गम होता है ना, खौफ होता है, तो ऐसा लगता है हलक में कुछ फंस गया है। जब बहुत ज्यादा रोता है बंदा तब भी, तो उस वक्त ये हालत होगा, गम से, परेशानी से। उस दिन फिर ये नामा माल खोले जाएंगे, और ये बहुत छोटी छोटी चीजें, माइनर चीजें ना, किसी को देख के आंख से इशारा कर देना, किसी को दिल में सोच लेना, किसी दूसरे को इशारा ना भी करना, खुद ही किसी के बारे में, किसी को हम देख रहे होते हैं ना, कोई बातें कर रहा है जिससे हम जेलस होते हो, तुम्हारे चेहरे पे बड़े गंदे एक्सप्रेशन होते हैं उस वक्त। अगर कोई हमारी तस्वीर खींच के दिखाए ना हमें, तो हमें पता चलेगा हम इतनी बुरी शक्ल बनाए हुए थे। ये सब एक्सप्रेशंस लिखे जाएंगे। तो आज के दिन हमारे पास वक्त है, दिल को साफ कर ले। फिर अल्लाह से मुलाकात के लिए एक तैयारी ये भी होती है, कल्बे सलीम चाहिए। कल्बे सलीम क्या होता है? जिसमें किसी दूसरे के लिए बुरी बात ना हो। तो दिलों से हमें दूसरों को माफ करना चाहिए, और अगर हमसे माफ नहीं हो रहा तो कम से कम अल्लाह से दुआ करिए, अल्लाह मेरे दिल को साफ कर दे। जिसके सामने हमें अपना एक्सप्रेशन झाड़ने का दिल करता है, इसका मतलब है कि हम उससे हसद का या जलन का शिकार हैं, कि हम उस पर कुछ जाहिर करना चाहते हैं कि आई एम समथिंग। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह मेरे दिल को साफ कर दे। मैं ऐसा क्यों सोचती हूँ, मैं मेरे जहन में ऐसे ख्याल क्यों आते? तो ये जो अपने आप को हम कुछ समझते हैं ना, ये सब दिलों की बीमारियां हैं। वल्लाहु यक़दी बिल हक़, और अल्लाह फैसला करता है हक के साथ। और वो लोग जो पुकारते हैं अल्लाह के सिवा, नहीं वो फैसला करते किसी चीज का, बेशक अल्लाह ताला वो सुनने वाला, देखने वाला है। अवलम यसीरु फिल अर्दि फयंजुरु कैफ़ काना आक़िबतुल लज़ीना कानू मिन क़ब्लिहिम, क्या भला वो चले फिरे नहीं जमीन में, तो वो देखते कि किस तरह हुआ अंजाम है लोगों का जो इनसे पहले थे वो ज्यादा शदीद इनसे कुव्वत में और आसार में, यानी निशानियों में, जमीन में। फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम, पकड़ लिया इनको अल्लाह ने इनके गुनाहों की वजह से। कुफार मक्का को कहा जा रहा है कि तुम्हारी तो कोई आसार नहीं है। आप देखिए ना, काबतुल्लाह के अलावा क्या था वहां? कोई बिल्डिंग हो, कोई मॉन्यूमेंट हो, कुछ उन्होंने बनाया हो, कुछ करके दिखाया हो, लिखते तक तो थे नहीं, शायरी शायरी थी, वो भी जबानी कलामी, लिखना भी नहीं जानते थे। तो तुमने तो कुछ नहीं किया, तुमसे पहले ऐसी बड़ी बड़ी कौमें आई, फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम वमा काना लहुम मिनल्लाहि मिन वाक़, और नहीं था इनके लिए अल्लाह से कोई बचाने वाला। ज़ालिका बिअन्नहुम कानत तअतीहिम, ये बात इसलिए कि बेशक थे आते इनके पास इनके रसूल रोशन दलाइल के साथ, तो उन्होंने कुफ्र किया, फिर पकड़ लिया इनको अल्लाह ने। इन्नहु कविय्युन शदीदुल इक़ाब, बेशक वो कुव्वत वाला है, सख्त सजा देने वाला है। आयत नंबर 23, वलक़द अरसलना मूसा बिआयातिना व सुल्तानिन मुबीन, और तहकीक दी हमने मूसा को अपनी निशानियां और रोशन दलीलें, भेजा हमने मूसा को निशानी की, 9 निशानियां थी, यद बैजा और असा था 2, और 7 जो अजाब आए उन पर, और रोशन दलील के साथ फिरौन की तरफ और हामान की तरफ और कारून की तरफ। कारून को देखिए अब अलग से मेंशन हो रहा है। फ़क़ालू, तो उन्होंने कहा, साहिरुन कज़्ज़ाब, जादूगर है, बहुत ज्यादा झूठा है। फलम्मा जाअहुम बिल हक़, तो जब वो लाया इनके पास हक को, हमारे पास से, क़ालू उक़्तुलू अब्ना अल्लज़ीना आमनू मअहु वस्तहय्यू निसाअहुम, तो उन्होंने कहा कि कत्ल कर दो इनके बेटों को जो ईमान लाए मूसा पर, और जिंदा छोड़ दो इनकी औरतों को। तो 2 दफा गले काटे गए, पहले जिस साल पैदाइश होनी थी हजरत मूसा की, उस दौरान जो साल थे, जब फिरौन ने ख्वाब देखा था कि बनी इसराइली में से एक नूर निकला है, और उस नूर ने जो है इसके फिरौन को तहस नहस कर दिया है। तब और फिर जब हजरत मूसा आए दोबारा तालीमात लेके, तो उन्होंने कहा जो ईमान लाएगा, बंदे को नहीं मारना, उनकी जो औलाद है, जो बेटे हैं, उनके बेटों को कत्ल कर दो। ला इलाहा इल्लल्लाह कहने की कीमत थी उस वक्त, आप समझ सकते हैं आज हम कितने आराम से कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। चप्पे चप्पे में मसाजिद बनी हुई है, जहाँ दिल चाहे बाजार है, मॉल्स के अंदर मस्जिद है, जहाँ आराम से अल्लाह की इबादत करें, सहूलियात मौजूद है, कैसी प्यारी आज़ादियां हैं हमें। और उस वक्त देखिए क्या कीमत थी, किसी का एक बेटा है, 2 है, 4 है, गले काट दो, मार दो इनकी औलादों को जो मूसा पे ईमान ले आए।
फिर भी हम ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कहते, फिर भी हम वैसा शुक्र नहीं अदा करते अल्लाह का जैसा करना चाहिए। वमा कैदुल काफिरीन अल्लाह फी दलाल, नहीं चाल काफिरों की मगर गुमराही में। वकाला फिरौन, और कहा फिरौन ने, जरूनी छोड़ो मुझको, अक्तुल मूसा, मैं कत्ल कर दूं मूसा को, वलियदउ रब्बा, और चाहिए कि वो पुकारे अपने रब को। फिरौन मूसा को मार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मारना चाहता था, लेकिन मार नहीं पाया क्योंकि अल्लाह की ताईद शामिल होती है रसूल के साथ। एक तो ये बात, दूसरी बात, उसके लिए फिर अल्लाह ने असबाब बनाए। उसके दरबारी ये कहते थे कि तुम इसको मारोगे तो फिर तुम्हारी पोजीशन कमजोर हो जाएगी, ये तो तुम्हारी महल में पढ़ बढ़ के जवान हुआ है, तो तुम इसे रुस्वा करो, कंपटीशन करवाओ। जब ये रुस्वा होगा तो लोगों की नजर में हीरो नहीं बनेगा। इन्नी अखाफु अन युबद्दिल दीनकुम, और वो क्यों कत्ल करना चाहता था कि बेशक मैं डरता हूं कि वो बदल देगा तुम्हारे दीन को, या वो जमीन में फसाद बर्पा कर देगा। जमीन में फसाद, यानी आले फिरौन का पूरा लाइफ स्टाइल बदल देगा। यानी हमारी जो हमारी शान है ना, जो हमारा टैका है, कि जिसे कहते हैं ना कि हाँ फिरौन माना जाता था उसको, वो बादशाहों की जो सीरीज थी फेरा पूरी फिरौन फिरौन, तो वो उनका एक रोब होता था कि ऐसा ना हो हमारा रोब खत्म हो जाए, हमारा लाइफ स्टाइल हमसे छीन ले हमारा। वकाला मूसा, और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, बेशक मैं पनाह चाहता हूँ अपने रब की और तुम्हारे रब की, हर तकब्बुर करने वाले से जो नहीं ईमान रखता हिसाब के दिन पर। वकाला रजुल मोमिन, और कहा इस मोमिन शख्स ने, अब जिसके ऊपर इस सूरा का नाम है, और ये आले फिरौन में से था। आले फिरौन में से बहुत कम ईमान लाए फिरौन के जुल्म की वजह से, कि ये हमारे साथ हमारा बहुत बुरा हशर करेगा, तो बहुत कम ईमान लाए। तो उसमें जो थे, क्योंकि देखिए ना वो कह रहा है जो ईमान लाए तो उसके बच्चे को गले काट दो, तो बहुत कम ईमान लाए। उसमें से एक बंदा है जो अपना ईमान छुपाया हुआ था, तो वो कहता है अले फिरौन से, जो छुपाया हुआ था अपना ईमान, क्या तुम कत्ल करते हो एक शख्स को जो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है? यानी सिर्फ रब्बी अल्लाह कहने पे तुम कत्ल कर रहे हो। वक़द जाअकुमुल बय्यिनातु मिन रब्बिकुम, जबकि वो तुम्हारे पास रोशन दलाइल है तुम्हारे रब की तरफ से। यानी कोई हवाई खलाई बातें तो नहीं कर रहा, प्रूफ कर रहा है वो तो अपनी बात को। वहीं यको कादिबन फअलैहि कदिबु, अगर वो झूठा है तो इसी पर इसका झूठ है। वहीं यको सादिकन, और अगर वो सच्चा हुआ, युसिबकुम बादल्लज़ी यईदुकुम, फिर वो पहुंचेगा तुमको जो जिसका वो तुम्हें वादा कर रहा है, जिसकी तुम्हें वार्निंग दे रहा है। यानी देखो, हजरत मूसा है, अगर सच्चे हुए तो फिर तुम सोच लो क्या होगा, अगर झूठे हैं तो फिर तो उनका झूठ उनके ऊपर है। लेकिन अकल से काम लो, तुम्हारी अकल को क्या हो गया है? अगर हकीकतन ये सच्चे हुए, ये दलाइल भी पेश कर रहे हैं, तो फिर तुम्हारा क्या होगा? इन्नल्लाह ला यहदी मन हुवा मुस्रिफुन कद्दाब, बेशक नहीं हिदायत देता जो कोई हद से गुजरने वाला हो, बेशक नहीं अल्लाह हिदायत देता। यानी असल में झूठे तुम ही हो, इसीलिए तो तुम्हें हिदायत नहीं मिल रही। मुसरिफ और कद्दाब, मुसरिफ हद से गुजरने वाला जो कि फिरौन था, जिसके पास माल होता है, आपने देखा वो हद से गुजर जाते हैं। शादी हो रही है, 4 डिशें 5 डिशें नहीं, अब बहुत माल होता है तो 15-15 डिशें, हफ्ते हफ्ते पहले से शादी शुरू हो जाती है। इसराफ करता है, मुसरिफ हो जाता है बंदा माल की कसरत से, जो कि फिरौन आले फिरौन के पास थी। और कद्दाब, झूठा। या कौमी, ए मेरी कौम, लकुमुल मुल्क, तुम्हारे लिए बादशाहत है आज के दिन, गालिब आने वाले हो जमीन में, कौन मदद करेगा हमारी अल्लाह के अजाब से? अगर वो आगे हमारे पास नहीं, अगर आज तो इक्तदार है, कल के बारे में सोचो, कल क्या होगा? मरना तो है, मर के तो जाना है, फिर क्या करोगे? कौला फिरौन मा उरीकुम इल्ला मा अरा, फिरौन ने कहा कि नहीं, मैं देखता मगर जो मैं देखता हूँ। यानी मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ ना, असल बात ये है, मैं तुम्हें हिदायत दे रहा हूँ सही, मैं तुम्हें जैसा मैं सोचता हूँ, और मैं बिल्कुल सही सोचता हूँ। मुसरिफ था ना, कज़ाब था ना वो, तो वो कह रहा है कि मैं जो तुम्हें गाइड कर रहा हूँ बेस्ट गाइडेंस है। वमा आदि को मिल्ला सबीला रशाद, और नहीं मैं दिखाता तुमको मगर भलाई का रास्ता, यानी मेरी गाइडेंस बेस्ट है, भलाई की तरफ है, मेरी बात पे चलो। वक़ाल लजीना आमना या कौम, और कहा इस शख्स ने जो ईमान लाया था, ए मेरी कौम, इन्नी अखाफु अलैकुम मिस्ला यौमिल अहज़ाब, मैं डरता हूँ तुम पर ग्रोहों के, गुज़श्ता अक़वाम के दिनों के मानिंद, यानी तारीख का मुताला करता था, कोई आम शख्स नहीं था, वो इंफॉर्मेशन रखता था। मिस्ला दाबी कौम नूह व आदिम व समूद, मानिंद कौम नूह के, कौम आद के, कौम समूद के, और इन लोगों के जो इनके बाद थे, कौम लूत वगैरह। वमल्लाहु यरीदु जुल्मन लिल इबाद, और नहीं अल्लाह इरादा रखता जुल्म का अपने बंदों के लिए। यानी अल्लाह ने ऐਵੇਂ ही उन पे अजाब नहीं भेजे थे, उन्होंने वही हरकतें की थी जो तुम कर रहे हो। और या कौमी, और है मेरी कौम, बेशक मैं डरता हूँ तुम पर पुकारने के दिन से, यानी कयामत के दिन से। निदा, तनाद है ना, तनाद में पुकारना, निदा पुकार होती है। तो जिस दिन सूर वाला जो दिन होगा, जो पुकार होगी, मैं उस दिन के हवाले से तुम्हारे दिन में, तुम्हारे मामले में बहुत खौफ रखता हूँ। यौम तुवल्लून मुदबिरीन, जिस दिन तुम फिर जाओगे पीठ फेर कर, नहीं तुम्हारे लिए अल्लाह से कोई बचाने वाला, और जिसको भटका दे अल्लाह तो नहीं इसके लिए मिनहाद, कोई हादी। वलक़द जाअकुम यूसुफ, और तुम्हारे पास तो यूसुफ अलैहिस्सलाम भी आए थे, मिन कब्ल, इससे पहले, बिल बय्यिनाति, रोशन दलाइल के साथ। फमा जिलतुम फी शक्किन, तो तुम मुसलसल उनके मामले में भी शक में रहे, उन बातों में जो वो तुम्हारे पास लाए थे। हत्ता इज़ा हलाका, यहाँ तक कि जब वो फौत हो गए, कुल तुमने कहा, नहीं अब अल्लाह मिन बादी रसूला, कि अल्लाह इसके बाद कोई रसूल नहीं भेजेगा। यानी तुम्हारे साथ मसला ये है कि जब तुम्हारे पास कोई ऐसी हस्ती मौजूद होती है जिससे फायदा उठाया जा सके, तो तुम उस मामले में शक में ही शिकार रहते हो, और जब वो चली जाती है तो तुम कहते हो ये तो बहुत बेस्ट है, इन जैसा तो कोई रसूल नहीं आएगा।
یہ بالکل میں آپ کو بتاؤں، یہ ایک نفسیات ہے، یہ ہم میں بھی ہے۔ جب ہم زندہ لوگ ہوتے ہیں نا تو ان کی قدردانی نہیں کرتے۔ امی ابو زندہ ہیں، اگر حیات ہیں آپ کے، آپ ٹاپ آف دا ورلڈ ہیں، آپ ان سے جنت کما لیں، ادھر ادھر کہیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہی آپ کی چلتی پھرتی جنت گھر میں موجود ہے۔ جب وہ چلے جاتے ہیں تو بچوں کو دیکھا کیسے باتیں کرتے ہیں، ہاں امی یہ کہتی تھی، امی وہ کہتی تھی، امی بڑی اچھی تھی، زندہ ہوتے تو شکوے کرتے رہتے، امی آپ تو یہ کر دیا، آپ یہ کر دیتی تو میرا یہ ہو جاتا، ابو سے شکوے چل رہے۔ یہ ایک گھٹیا نفسیات ہوتی ہے انسان کی۔ تو فائدہ وہی اٹھاتا ہے جو زندہ دل ہوتا ہے، زندہ دل وہ ہوتا ہے جو زندوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، تو ان کو ان کے بد اخلاقی کی ایک اور بے وقوفی کی دلیل بھی دے رہا ہے، اور ساتھ ہمارے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ تو میری ریکویسٹ ہے، جن کے والدین گھروں میں موجود ہیں اس وقت، تو وہ ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اگر وہ دور رہتے ہیں، آپ کسی دوسرے ملک میں رہنی، وہ دوسرے ملک میں، ان سے بات کیا کریں، روز کوشش ہو تو روز بات کرے بندہ، 5 منٹ الارم لگا لے موبائل پر، ان سے بات کریں، ان کی ضروریات کا ہم خیال رکھیں، یہ بہت ضروری ہے۔ بعد میں جب وہ چلے جائیں گے تو ہم نے حسرتیں ہی کرنی ہے کہ ہم بھی جنت کما لیتے۔ کذالک یضل اللہ من ہوا مسرف مرتاب، دوبارہ مسرف کا لفظ وہ استعمال کر رہا ہے، اور اسی طرح بھٹکاتا ہے اللہ جو کوئی ہو حد سے بڑھنے والا اور مرتاب، شک میں رہنے والا۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان آتاہم کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا، اور وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیات میں بغیر کسی دلیل کے آئی ہو جو ان کے پاس، بڑا ہے ناراضگی میں اللہ کے نزدیک اور ان لوگوں کے نزدیک جو ایمان لائے، یعنی اللہ کی آیات میں جھگڑا کرنا اللہ کو بڑا غصہ دلانے والی بات ہے۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اسی طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ اوپر ہر تکبر والے اور جبار کے دل پر۔ وقال فرعون، اور فرعون نے کہا، یا حامان، اے حامان، بنا لو ذرا میرے لیے ایک محل تاکہ میں پہنچ سکوں، ابلغ الاسباب، یعنی آسمان کے دروازوں پہ پہنچوں، کوئی پورٹل وورٹل کھولوں میں ذرا، اسباب السماوات، آسمان کے پورٹلز ہوں، فطلع الی الہ موسیٰ، تو میں ذرا موسیٰ علیہ السلام کے الہ کو جھانکوں تو کہاں ہے موسیٰ کا رب، وانی لاظنہ کاذبا، اور بے شک میں البتہ گمان کرتا ہوں اس کو جھوٹا، یعنی میں اسے جھوٹا ہی سمجھتا ہوں، چاہے تم کوئی مجھے پورٹل بھی کھول کے دے دو آسمان سے اور میں جھانک لوں اس میں، یہ بھی تفسیر کر سکتے ہیں، یہ بھی تفسیر موجود ہے، مذاق اڑا رہا ہے کہ یہ کہتا ہے نا رب السماواتی والارض، کیونکہ فرعون اپنے آپ کو بھی انا ربکم الاعلی کہتا تھا، تو کہہ رہے تھے یہ تو آسمانوں کا رب ہے، تو ذرا کچھ آسمانوں پہ تو دروازے بناؤ، میں جھانک کر دیکھوں کدھر رہتا ہے اس کا رب۔ وکذالک زین لفرعون سوء عملی، اور اسی طرح خوبصورت بنا دیا گیا فرعون کے لیے اس کا برا عمل، اور روک دیا گیا راستے سے، اور نہیں چال فرعون کی مگر فی تباب، ہلاکت میں۔ تب کہتے ہیں مسلسل نقصان کی وجہ سے ہلاکت کو پہنچنا ہے، تبت یدا ابی لہب و تب، تب اسی سے تباب۔ وقال الذی، اور کہا اس شخص نے جو ایمان لایا تھا، اے میری قوم پیروی کرو میری، اہدکم سبیل الرشاد، میں رہنمائی کروں گا تمہارا درست راستے کی طرف، یا قومی، اے میری قوم، انما ھذہ الحیات الدنیا متاع، یہ دنیا کی زندگی ہے، تھوڑے سے فائدہ ہے، وان الاخرۃ، اور آخرت ہی دار القرار، وہ قرار کی جگہ ہے۔ دیکھیے ہر اینگل سے سمجھا رہا ہے اپنی قوم کو، پہلے ماضی کا حوالہ دے کے سمجھایا، پھر یہ بتایا کہ حضرت موسیٰ جھوٹا ہے، جھوٹے ہیں یعنی تو ان کے اوپر ہی جھوٹ ہوگا، سچے ہوئے تو تمہارا کیا ہوگا، عقل بھی جھنجھوڑ رہا ہے، نالج بھی جھنجھوڑ رہا ہے، دلائل سے بھی بات کر رہا ہے، اب تھوڑا سا جذباتی پہلو بھی لے کر آیا ہے، کیا کہ دنیا کی زندگی تو تھوڑا سا فائدہ ہے، وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةٍ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا، جو کوئی عمل کرے گا تو بدلہ دیا جائے گا مگر اسی کی مانند، اور جو کوئی عمل کرے گا برا تو بدلہ دیا جائے گا اسی کی مانند، اور جو کوئی عمل کرے اچھے، خواہ مرد ہو یا عورت، وہ مؤمن اور وہ مومن ہو، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو یہی لوگ داخل ہوں گے جنت میں، رزق دیے جائیں گے اس میں بغیر حساب کے۔ وَيَا قَوْمِي، اور اے میری قوم، مَالِيَ أَدْعُوكُمْ، کیا ہے میرے لیے میں بلاتا ہوں تم کو، إِلَى النَّجَاةِ، نجات کی طرف، اور وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو، تم 99% ہو، تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو، میں تم میں سے 1% بھی نہیں ہوں، میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں۔ مالی، مجھے کیا ہے، مطلب میرا کیا فائدہ ہے اس میں، یعنی میری دعویٰ جو میں تمہیں بلا رہا ہوں، جان مار رہا ہوں، یہ سچی ہے، یہ حق ہے، میرا کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں تو بہت چھوٹا ہوں تم میں سے، بہت کم ہوں، تم تو مجھے ابھی چیونٹی کی طرح مسلنے والے ہو، پتا تھا نا یہ انجام ہونا اس کا۔ تو میرا کوئی طاقت جتھا نہیں ہے کہ میں اپنی کوئی پارٹی بنانا چاہ رہا ہوں، کچھ کرنا ہوں، میں تو تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں بس، اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تدعوننی لاکفر باللہ، تم مجھے پکارتے ہو کہ میں کفر کروں اللہ کے ساتھ اور میں شریک ٹھہراؤں ساتھ اس کے جس کے میرے پاس کوئی علم نہیں، وانا عدوکم، اور میں بلاتا ہوں تم کو عزیز الغفار کی طرف، بخشنے والے مہربان کی طرف۔ لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس له دعوۃ فی الدنیا ولا فی الاخرہ، نہیں کوئی شک، بے شک تم بلاتے ہو مجھ کو جس کی طرف نہیں ہے اس کے لیے کوئی دعوت، یعنی اس کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے دنیا اور آخرت میں، اللہ کو چھوڑ کے کہاں جائیں گے۔ کیسے مثال ہے شرک کی، جیسے کوئی آسمان سے گر گیا اور اسے پرندوں نے اچک لیا ہو، یعنی چک مار مار کے پرندے اس کو کھانا شروع کر دیں،
उसमें से बाइट्स लेना शुरू कर दें, उसे नोचना शुरू कर दें, फिर वो जमीन पे कहीं गिर जाए, और फिर हवाएं उसे इधर से उधर पटकती फिरे। यानी मुशरिक की जिंदगी ऐसी है, कोई पॉइंट नहीं है उसकी जिंदगी में, उस वो एक मुर्दा इंसान की तरह है जो आसमान से गिर गया और हवाओं के बल पे कभी यहाँ जा रहा है कभी वहां जा रहा है, दलील से जिंदगी नहीं गुजार रहा। उसने कहा कि हाँ ये वाले बाबा के पास चले जाओ, वो औलाद नहीं हो रही, वो झूले वाले बाबा है वहां चले जाओ। आपको पता है कितने पीर फकीर हैं? एक कुत्ते वाली सरकार है कोई, एक बरहना सरकार है, उनसे तो बोला भी नहीं जा रहा लफ्ज़, जो पूरा बरहना बैठा होता है, कश्मीर में है कहीं वो आदमी, वो भी सरकार है कोई, जाए उनसे सिफारिश करें। एक दम वाली सरकार है, माइक पे दम कर देते हैं, जो सब सर पे हाथ रख के खड़े होते हैं उनके ऊपर दम हो जाता है। ये कैसे, जैसे आसमान से कोई गिर गया और जहां हवा जा रही है बस उधर जा रहा है और हर कोई इससे फायदा उठा रहा है। परिंदे जो है ना चोंच मार मार के खा रहे हैं, फिर गिरता है, आसमान से गिरा, खजूर में अटका, उधर से हवा चली, उधर से पत्थर से टकराया, उधर हवा चली, उसने उधर दरख्त से फेंक दिया। ला जरामा, नहीं कोई शक, बेशक तुम बुलाते हो मुझे जिसकी तरफ, इसके लिए तो कोई दावत ही नहीं, उसका तो कोई इख्तियार ही नहीं दुनिया में ना आखिरत में। और व अन्ना मरदना इलल्लाहि व अन्नल मुस्रिफीना हुम अस्हाबुन नार, और बेशक पलटना हमारा अल्लाह की तरफ है, और बेशक हद से बढ़ने वाले वो आग के साथी हैं। बार बार मुस्रिफ कह रहा है। फसतस्कुरून, पसंद करीब तुम याद करोगे, माँ अकूलु लकुम, जो मैं तुमको कह रहा हूँ। यानी मैं, मुझे तो नहीं पता मेरा क्या अंजाम होगा, मैं तो जाने वाला ही हूँ अब दुनिया से, लेकिन तुम याद करोगे जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ। ये होता है ना, कभी कोई बहुत प्यार से समझाता है और ये कहता है ना कि तुम याद रखोगी जो मैंने तुम्हें समझाया ना, तुम याद करोगी, वक्त आएगा कि मेरी दोस्त ने मुझे ये कहा था। तो ये वो भी कह रहा है, फसतस्कुरून मा अकूलु लकुम, तुम भी याद करोगे। यानी जब तुम डैमेज उठाओगे, नुकसान उठाओगे, तब तुम्हें याद आएगा कि तुम्हारा कोई दोस्त साथी, कोई तुम्हारे कौम का बंदा था। वफ़व्विदु अमरी इलल्लाह, और मैं सुपुर्द करता हूँ अपना मामला अल्लाह की तरफ। यानी अब उसे पता था मेरा दुनियावी अंजाम क्या होने वाला है, जो कि जादूगरों के हवाले से हुआ कि सूली दे दी गई है, मुझे भी कोई ऐसी सजा दे के मार दिया जाएगा। तो वो कहता है मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर रहा हूँ। इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, बेशक अल्लाह ताला देखने वाला है बंदों को। तो लेकिन हुआ क्या ये, हमने सूरह यासीन में देखा था ना कि वो बंदा आया था अक्सल मदीना दौड़ता हुआ, और उसने फिर तायीद की थी प्रॉफिट्स की, उसको तो मार दिया गया था। यहाँ अल्लाह ने इस रजुल मोमिन को बचा लिया। अल्लाह ताला फरमाते फवक़ाहुल्लाहु सय्यिआत, तो बचा लिया इसको अल्लाह ने बुराई से, जो उन्होंने चाल चली उससे, कत्ल की चालों से बचा लिया, और घेर लिया आले फिरौन को बुरे अजाब में। तो अल्लाह जहां चाहे जैसे चाहे एक की भी हिफाजत कर सकता है, चाहे उसके मुकाबले में फिरौन और आले फिरौन ही क्यों ना खड़ी हो। अन्नार, आग है, युरअदूना अलैहा, वो पेश किए जाते हैं इस पर सुबह और शाम, अदुव्वुम व अशिय्या। तो आले फिरौन सुबह शाम आग पे पेश की जाती है। व यौमल क़ियामती युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब, और क़यामत के दिन अशद्दिल अज़ाब में दाखिल किए जाएंगे। हजरत हजरत अबू हुरैरा से मिलती है रिवायत की, जब वो सुबह होती ना तो वो कहते हैं आले फिरौन आग पे पेश कर दी गई होगी, फिर जब शाम होती तो कहते हैं आले फिरौन आग पे पेश कर दी गई होगी। अब ये कब्र के अजाब पे भी दलालत दलालत करती है आयत। वह यौम तक़ूमु स्साअ, और जिस दिन कायम होगी कयामत, दाखिल करो आले फिरौन को ज्यादा शदीद अजाब में। वही यतहाज्जून, और जब वो बाहम झगड़ेंगे आग में, तो कहेंगे कमजोर लोग इन लोगों के जिन्होंने तकब्बुर किया, थे हम तुम्हारे लिए ताबे, फहल अंतुम मुगनूना अन्ना नसीबा मिनन नार, यानी हम तो सारी जिंदगी तुम्हारी पैरवी किए, तो क्या तुम हमसे बचाने वाले हो एक हिस्से से, नसीबम मिनन नार, थोड़ी सी आग से ही बचा लो जहन्नुम की, थोड़ी सी आग कम कर दो हम पे से। क़ाल लज़ीना इस्तकबरू, कहेंगे वो लोग जिन्होंने तकब्बुर किया, इन्ना कुल्लुन फीहा, हम सबके सब इसी आग में हैं। इन्नल्लाह क़द हकम बैनल इबाद, अल्लाह ताला ने फैसला कर दिया बंदों के दरमियान, अब हम कोई एक दूसरे को नहीं बचा सकते, अल्लाह ने फैसला कर दिया और जहन्नुम भी हमारा मुकद्दर है। वक़ाल लज़ीना फिन्नार, और कहेंगे लोग जो आग में, पहले तो आपस में एक दूसरे से कहेंगे, किसी तरह कोई बचत का रास्ता मिल जाए, जब नाउम्मीदी हो जाएगी तो फिर जहन्नुम के दरोगा के पास पहुंचेंगे। कहेंगे जो आग में होंगे अहलकारों से, खजनती जहन्नमा, जहन्नुम के अहलकारों से, उसके दरोगा से, उसके दरबानों से, उदउ रब्बकुम, अपने रब को पुकारो, क्योंकि खुद तो पुकार कैसे, मतलब सिफारिश करवाएंगे एक तरह से, उन्हें पता है फरिश्ते इनका कनेक्शन है। उदउ रब्बकुम, अपने रब को पुकारो, युखफिफ, हल्का ही कर दे, अन्ना, हमसे, यौम मिन अल अजाब, अजाब में से एक दिन की मोहलत मिल जाए, एक दिन की ही छुट्टी दे दे हमें अजाब में से। क़ालू अवलम तकुन क़ाल अवलम तकुन तअतीकुम रुसुलुकुम बिल बय्यिनात, फरिश्ते कहेंगे, जहन्नुम के दारोगा कहेंगे, क्या भला नहीं आते थे तुम्हारे पास तुम्हारे रसूल रोशन दलाइल के साथ? कालू बला, वो कहेंगे क्यों नहीं? कालू फदलू, तो वो कहेंगे बस खुद ही दुआ कर लो, फिर खुद ही पुकार लो, हमसे क्यों? नबी आए थे ना, मतलब अगर ये हुज्जत हो जाती नबी नहीं आया हमें तो कोई बात थी कि अच्छा चलो कोई रास्ता निकलता है कि इनके पास पहुंची नहीं डायरेक्ट वो।
अब ये वो हैं जिनके पास नबी आए हैं डायरेक्ट। अब कोई ऐसा बंदा है जिस तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम नहीं पहुंचा, मिसाल के तौर पर उसने कभी नबी नहीं देखा। बहुत सारे ऐसे लोग गए ना, हजरत इस्माइल के बाद अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बहुत अरसे बाद आए थे, बीच में बहुत सारे लोग शहीद हुए, अस्तगफिरुल्लाह, बहुत सारे लोग दुनिया से गए। अब उनमें से हर कोई उज़र पेश कर सकता है ना, अगर दावा उस पे नबी की तालीम नहीं पहुंची उस तक। तो ये कौन से लोग हैं जिन पे रुसुल हुकुम, जिन पर नबियों की डायरेक्ट तालीम पहुंची है। तो वो कह रहे हैं जब तुम्हारे पास आए थे रसूल, तो भाई हम क्या कर सकते हैं, खुद ही दुआ कर लो। वमा दुआउल काफिरीन इल्ला फी दलाल, और नहीं है दुआ काफिरों की मगर गुमराह हो जाने वाली, यानी दुआएं खो जाएंगी। सैकड़ों साल कहते हैं, पता नहीं कितने साल या दसियों साल वो दुआ करेंगे, फिर जवाब आएगा वो भी नो। तो 70 साल कुछ ऐसे करके रिवायत में किसी में आता है कि दुआएं करते रहेंगे और जवाब आएगा फिर, लेकिन वो नो में आएगा जवाब। इन्ना लनंसुर रुसुलना, अलबत्ता हम अपने रसूलों की मदद करते हैं, और इन लोगों की मदद करते हैं जो ईमान लाए दुनिया की जिंदगी में, और जिस दिन खड़े होंगे गवाह, यानी कयामत के दिन जब गवाहियां होंगी तब भी अल्लाह मदद करेंगे। कितनी प्यारी बात है ना, वो प्रोटेक्शन होगी आपके पास। अल्लाह उस दिन ईमान वालों की मदद करेंगे। और दुनिया में भी ऐसे लोगों की मदद की जाती है। यौम ला यनफउ ज़ालिमीन माज़िरतुहुम, जिस दिन न नफा देगा जालिमों को इनकी माजरत, और इन्हीं के लिए लानत है और इन्हीं के लिए बदतरीन घर है। वलक़द आतैना मूसा अल हुदा, और अलबत्ता तहकीक दी हमने मूसा अलैहिस्सलाम को हिदायत, और वारिस बनाया हमने बनी इसराइल को किताब का, जो हिदायत है और नसीहत थी अकल वालों के लिए। बस सब्र कीजिए, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, और बख्शिश मांगिए अपने कसूर के लिए, और तस्बीह कीजिए अपने रब के हमद के साथ सुबह को और शाम को। इन्नल लज़ीना युजादिलूना फी आयातिल्लाह, बेशक वो लोग जो झगड़ते हैं अल्लाह की आयत में बगैर किसी दलील के जो इनके पास आई हो। इन फी सुदूरिहिम इल्ला किब्रुम मा हुम बिबालिगी, नहीं इनके सीनों में मगर बड़ाई और तकब्बुर, यानी खुद को बड़ा समझते हैं, इसलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट खड़े हो गए हैं। और ऐसी बड़ाई है जिसको वो पहुंचने वाले नहीं, यानी हकीकत में वो उस बड़ाई को नहीं पहुंच सकते जितना बड़ा खुद को समझते हैं। यही कमाल की बात है, जब बंदा अपने आप को कुछ समझता है ना, तो मा हुम बिबालिगी होता है वो होता नहीं है, वो उस बड़ाई को पहुंचने वाला नहीं होता। जिस वक्त बंदा ये समझता है कि मैं कुछ हूं, उसी वक्त वो नीचे गिर जाता है, वो उस लेवल से भी नीचे गिर जाता है जिस लेवल पे वो उस वक्त खड़ा होता है। यही तो कमाल है तकब्बुर का, कि तकब्बुर आपको ठक नीचे गिराता है। आप ऊपर, जैसे ही आप ऊपर बढ़ने का सोचते हैं कि मैं हूं, मैं, उसी लम्हे नीचे गिर जाता है बंदा। माँ हम बिबालिगी, फस्तइज बिल्लाह, बस पनाह तलब कीजिए अल्लाह की, बेशक वो सुनने वाला देखने वाला है। लखल्कु समावाति वल अर्दी अकबर मिन खल्किन नास, यकीनन पैदाइश आसमानों की और जमीन की ज्यादा बड़ी है इंसानों की पैदाइश से, लेकिन अक्सर लोग इल्म नहीं रखते। वमा यस्तविल आमा वल बसीर, यानी अपने आप को जो बड़ी चीज समझ रहे हैं वो देखें कि हम तो कायनात में कैसे एक जर्रे का जर्रा भी नहीं है, प्लेनेट अर्थ, और उसमें कहाँ इंसान, और फिर कहाँ इंसान की एक सोच के वो कोई बड़ी चीज है। वमा यस्तमिल आमा वल बसीर, और नहीं बराबर हो सकते अंधा और देखने वाला, और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे अमल किए और बुरे काम करने वाले, कलीला मा ततदक्करून, कितना कम है जो तुम नसीहत पकड़ते हो। इन्न साअत लआतियतुन ला रैब फीहा, बेशक कयामत की घड़ी अलबत्ता आने वाली है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं रखते। यानी इतनी यकीनी बात है उसको भी लोग नहीं मानते। वकाल रब्बुकुम उदउनी अस्तजिब लकुम, और कहा तुम्हारे रब ने मुझे पुकारो मैं जवाब दूंगा तुम्हारे लिए। दुआ में से सबको निकाल दिया। हमारे पास सवाल आ जाए कभी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ मांग ले, क्यों वसीले से मांग ले, अल्लाह ने कहा उदउनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो मैं जवाब दूंगा। तीन कलिमात है, तीन कलिमात में पूरा फॉर्मूला मौजूद है। उदउनी, मुझे पुकारो, अस्तजिब लकुम, मैं जवाब दूंगा तुम्हारे लिए। इन लजीना यस्तकबिरूना अन इबादती, बेशक वो लोग जो तकब्बुर करते हैं मेरी इबादत से, अनकरीब वो दाखिल होंगे जहन्नम में जलीलो खार होकर। यहाँ इबादत से मुराद दुआ है, जो अल्लाह से दुआ ना मांगे। दुआ कब नहीं मांगते हम मुसलमानों में, आपस की बात है वो ये है कि हम गफलत का शिकार होते हैं, अल्लाह की नेमतें मिली हुई होती हैं, नाशुक्रे होते हैं, फॉर ग्रांटेड लेते हैं हर चीज को, हमें किसी चीज की जरूरत ही नहीं होती तो हम अल्लाह को पुकारते ही नहीं, अल्लाह से बात ही नहीं करते। हम अल्लाह से उसी वक्त बात करते हैं जब कोई दुनिया की मुसीबत हम पर पड़ती है। अल्लाहु लज़ी जअल लकुम लैला लितस्कुनू फी, अल्लाह वो जात है जिसने बनाई तुम्हारे लिए रात ताकि तुम सुकून पाओ उसमें, और दिन रोशन। बेशक अल्लाह ताला अलबत्ता फजल वाला है लोगों पर, लेकिन अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी पिछली आयत में, कि हम अपने बच्चों को ये चीज सिखाएं। हमारे बच्चों की दुआओं में बहुत कमी है, शायद हमारी भी इस एज में कमी थी, क्योंकि सब चीजें पेरेंट्स अरेंज कर देते, तो बच्चों को कुछ चाहिए नहीं होता, तो वो अल्लाह से वो कनेक्शन बना ही नहीं पाते। उन्हें हमें बार बार एहसास दिलाना चाहिए, तहज्जुद के वक्त का बताना चाहिए, आजकल रमजान भी है, बच्चों में इस चीज को जगाना चाहिए कि बेटा अल्लाह से मांगे, अल्लाह से मांगे, अल्लाह से मांगे। स्पेशली ये भी किया जा सकता है कि किसी चीज को रोका जा सकता है, जो चीज उनको कोई बहुत पसंद है, और उनको कहा जाए कि नहीं अल्लाह से दुआ करें। और जब हकीकत दुआएं कबूल होती है तो बंदे का ईमान मजबूत होता है ना, अल्लाह की पहचान का जरिया है एक, कि हम दुआ करते हैं दुआ कबूल होती है, उससे भी हमें पहचान होती है अल्लाह की।
ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ رب تمہارا، پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کو، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی الہ مگر وہی، تو کہاں سے تم بہکائے جاتے ہو؟ آیت نمبر 63، کذالک یوفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، اسی طرح پھیرے جاتے ہیں، بہکائے جاتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، یعنی جو اللہ کی آیات کا نشانہ نہیں، اللہ کی آیات سے پہچانتا نہیں اللہ کو، تو شیطان جو ہے نا اسے اپنا نشانہ بنا لیتا ہے، تو یوفکو پھیرے جاتے ہیں، پیسو کا سیکھا ہے، بہکائے جاتے ہیں۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو قرار اور آسمان کو چھت، اور صورت بنائی تمہاری، تو کتنی ہی اچھی صورتیں بنائی تمہاری، انسان سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ جانوروں میں دیکھیں بچے خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں، کسی بھی جانور کا بچہ، اکثر کچھ تو بچے بھی اچھے نہیں ہوتے، لیکن انسان کا الٹا ہی معاملہ ہے، جب فیٹس میں ہوتا ہے تو اچھا نہیں لگتا، لیکن بچے انسان کے بھی بہت پیارے ہوتے ہیں، لیکن سب سے پیاری صورت انسان کی ہے۔ دیکھیں ہر جانور مختلف طرح سے چلتا ہے، وہ رینگ کے چل رہا ہے، وہ زمین سے گھسٹ کے چل رہا ہے، نہ ان میں پاکیزگی کا خیال ہوتا ہے، طہارت کا۔ انسان کو کیسا بنایا نا اللہ نے، یہ ہاتھ منہ دھوتا ہے، صاف ستھرا کرتا ہے اپنے آپ، وہ گندی جگہ پہ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا، اتنی پیاری صورت ہے، اتنی اچھی چال ہے انسان کی۔ بال دیکھیں کیسے ہوتے ہیں نا، ڈیڈ سیلز ہیں ہمارے بال، لیکن کتنے خوبصورت ہوتے ہیں۔ اللہ نے کتنی پیاری فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، کتنی پیاری چیزیں بنائی، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، رزق دیا تم کو پاکیزہ چیزوں میں سے، جیسے انسان کھاتا ہے، چیزیں پیک کر کے دی ہیں اللہ نے، ایک ایک قطرہ پیک ہوا ہوتا ہے، لیمن ہے، موسمبی ہے، پھل دیکھیں پیک ہوئے ہوئے ہوتے ہیں، آم کے اوپر چھلکا، کیلے کے اوپر چھلکا، آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح پیک ہوئے ہوئے ہوتی ہیں چیزیں، طیبات پاکیزہ چیزیں دی ہیں، اور جو پیک نہیں ہوتے پھر ہم ان کو اسپیشلی دھو کے کھاتے ہیں، صاف کر کے کھاتے ہیں۔ یہ اللہ نے ہمیں اعزاز دیا نا، آپ بکری کو ایک وہ ڈالیں گھاس، اس گھاس کے اوپر پیر رکھ دے گی، پیر رکھ کے اسی میں سے کھا بھی لے گی۔ تو یہ ہمیں اللہ نے احسن صورکم ورزقکم من الطیبات، یہ دو بہت بڑی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ، یہ ہے رب تمہارا، یہ کہتے ہیں نا یہ ہے میرے ہسبینڈ، یہ ہے میری فیملی، یہ ہے میرا گھر، تو ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب جس نے تمہیں یہ سب کچھ دیا۔ فتبارک اللہ رب العالمین، پس بہت بابرکت ہے اللہ جو رب ہے تمام جہانوں کا، هو الحی لا الہ الا ہو، اور وہ اللہ زندہ ہے، کوئی معبود نہیں مگر برحق وہی، پس پکارو اس کو خالص کرتے ہوئے، اسی کے لیے دین کو، بار بار یہی آ رہا ہے، صرف اور صرف اللہ کو پکارنا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ قل انی نہیت ان اعبد الذی تدعون من دون اللہ، کہہ دیجئے کہ بے شک میں روکا گیا ہوں کہ میں عبادت کروں ان ہستیوں کی جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، جبکہ آ گئی میرے پاس کھلی نشانیاں میرے رب کی طرف سے، وہ امرت، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اسلام لاؤں رب العالمین کے لیے، یعنی جھک جاؤں، مسلم کا مطلب فرما برداری اختیار کر لوں۔ هو الذی خلقکم من تراب، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر نکالتا ہے تم کو بچے کی شکل میں، پھر تاکہ تم پہنچو اپنی جوانی کو، پھر تک تم ہو جاؤ شیخ، شیوخا بوڑھے، 50 سے 80 سال کا جو عمر ہوتا ہے نا، شیوخت کہلاتی ہے۔ ومنکم، اور تم میں سے ایک جو فوت کیا جاتا ہے اس سے پہلے، یعنی 50 80 سے پہلے ہی چلا جاتا ہے، اور تاکہ تم پہنچو ایک مقررہ وقت کو، اور تاکہ تم عقل سے کام لو۔ پوری نشانی ہے انسان کی، پوری تکلیف اول و آخر بتائی کہ یہ اس کو کوئی ڈیل کر رہا ہے، اگر انسان ہی سب کچھ ہے تو پھر وہ کسی ایک خاص اسٹیج پہ اپنے آپ کو روک لے۔ ہم بچے ہوتے ہیں بہت خوبصورت لگتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو بچپن میں نہیں روک پاتے کہ ہاں بچے ہمارے ہمیشہ بچے ہی رہیں، بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ہم کیا ویسے ہی ان کے گال مروڑ رہے ہوتے ہیں کہ انہیں ہم گال پہ کس کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، وہ کیوٹنس ختم ہو جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ تو یہ اللہ ہے، کوئی اور ہستی ہے جو ہمارا مالک ہے، ہم بالکل، ہماری کوئی اختیار نہیں ہے اپنی ہی ذات پر۔ هو الذی یحیی و یمیت، اور اللہ وہ ذات ہے جو زندہ کرتا ہے اور فوت دیتا ہے، پھر جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا بے شک تو کہتا ہے کن ہو جا، فیکون، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ انا یسرفون، کیا تم نے دیکھا نہیں لوگوں کی طرف جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیات میں، کہاں سے وہ پھیرے جاتے ہیں؟ یعنی کون حاوی ہے ان پر، کون ان کی عقل کو سٹپٹائے ہوئے ہے؟ عقل سے کام لیں، اللہ کی قدرت کو دیکھیں تو جھگڑا نہ کریں۔ الذین کذبوا بالکتاب، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا کتاب کو، اور ساتھ اس کے جو بھیجا ہم نے اس کو، اپنے رسولوں کو، فسوف یعلمون، تو ان قریب وہ جان لیں گے۔ کیا ہے یہ؟ وہی ہے نا جو جہنم میں ڈسکشن ہو رہی ہے، داروغہ جو پوچھیں گے کہ رسول تو نہیں، رسول آئے تھے یا نہیں، تو وہ کہیں گے رسول آئے تھے، یہ انہی کا تذکرہ ہے ایک طرح سے۔ اذا الاغلال فی اعناقہم، جب طوق ہوں گے ان کی گردنوں میں، اور زنجیریں میں وہ گھسیٹے جائیں گے۔ گھسیٹتا کس کو بندہ؟ جو زمین پہ پڑا ہو، جو جالنا نہ چاہ رہا ہو، کوئی کھڑا ہونا تو دھکا لگاتے ہیں آپ، لیکن گھسیٹا کس کو جاتا ہے؟ جو لیٹ جائے، جو کہے میں نے نہیں جانا اس طرف، تو جہنم کی طرف وہ گھسیٹے جائیں گے، فی الحمیم، کھولتے پانی میں، ثم فی النار، پھر آگ میں وہ جھونکے جائیں گے۔ پھر کہا جائے گا لہم اینما کنتم تشرکون، کہاں ہیں جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا؟ قالوا ضلوا عنا بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، وہ کہیں گے گم ہو گئے ہیں ہم سے، بلکہ اصل بات تو یہ ہے کہ ہم اس سے پہلے کچھ پکارتے ہی نہیں تھے، یعنی سخت شامت آئی ہوگی نا تو انکار ہی کر دیں گے۔ کذالک یضل اللہ الکافرین، اسی طرح بھٹکاتا ہے اللہ کافروں کو۔ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر
بالحق، یہ سب کچھ تمہارے ساتھ اس لیے ہو رہا ہے کہ جو تم کرتے تھے زمین میں، اترایا کرتے تھے، اکڑتے تھے بغیر حق کے، اور بغیر جو تھے تم کچھ اتراتے، تمرہون، خوشی سے ایسی حالت ہونا تمرہون میں جس میں دوسروں کا مذاق اڑانا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مذاق اڑاتے تھے، ایمان والوں کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، اور پھر اب جنرل دیکھ لیں دوسروں کا مذاق اڑانا کتنی غلط بات ہے، سورہ حجرات آ جائے گی، اس میں یہ ڈیٹیل آ جائے گی۔ مذاق نہیں اڑانا چاہیے، چھوٹے چھوٹے بچوں کا ہم شروع میں بچپن میں مذاق اڑاتے ہیں تو ان کو لگتا ہے یہ نارمل ہے کہ دوسروں کا بھی مذاق اڑاؤ، یہ بہت بد اخلاقی والی بات ہے۔ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازے میں، ہمیشہ رہنے والے ہو اس میں، فبئس مثوی المتکبرین، کتنا بڑا تکبر، کتنا برا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ ہے۔ اگین متکبرین آ گیا، ہم آج کے بارے میں دو چیزیں بہت دیکھ رہے ہیں، تکبر اور اللہ کو خالص کر کے صرف اللہ کو ہی پکارنا ہے۔ فاصبر، پس صبر کیجئے، بے شک وعدہ اللہ کا سچا ہے۔ پھر اگر ہم دکھائیں آپ کو بعض وہ جو ہم ڈراتے ہیں ان کو جن سے، یہ ہم آپ کو فوت کر دیں تو انہی کی طرف، ہماری ہی طرف ان سب کا لوٹنا ہے، یعنی یہ جن سے عذاب کی بات کی جاتی تھی نا کفار مکہ سے، تو اللہ رب العزت فرمانے آپ کی زندگی میں بھی میں ان پہ لا سکتا ہوں اور آپ کے فوت کرنے کے بعد بھی لا سکتا ہوں، لیکن اصل بات یہ ان بوتھ دا کنڈیشن، آنا تو انہوں نے میری طرف ہے نا، اصل عذاب تو آخرت کا ہی ہے پھر۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور البتہ تحقیق بھیجے ہم نے کئی رسول آپ سے پہلے، ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کو ہم نے بیان کر دیا آپ پر، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کو ہم بیان نہیں کیا آپ پر۔ 25 یا 27 پیغمبروں کے نام ہے نا قرآن میں، ورنہ تو 1,24,000 بھیجے اللہ نے۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ، اور نہیں تھا کسی رسول کے لیے اختیار کے لے آتا کوئی نشانی مگر اللہ کے اذن کے ساتھ۔ پھر جب آ گیا حکم اللہ کا، فیصلہ کر دیا گیا حق کے ساتھ، تو خسارے میں پڑ گئے وہاں ہنالک المبطلون، غلط کار، یعنی پیغمبر کو جھٹلانے والوں نے پھر خسارہ اٹھایا۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام، اللہ وہ ذات ہے جس نے بنائے تمہارے لیے مویشی تاکہ تم سواری کرو ان میں سے بعض پر، اور ان میں سے تم کھاتے ہو، وَلَکُمْ فِیہا منافع، اور تمہارے لیے ان میں کچھ فائدے ہیں، یعنی دودھ ہے، کھال ہے، گوشت ہے، ہڈیاں بھی استعمال میں ہوتی ہیں، ایک ایک چیز استعمال کی ہے، اب تو اس کی سینگوں سے تصویاں تک بنتی ہے، ایک ایک چیز استعمال میں آتی ہے، ولی تبلغو، اور تاکہ تم پہنچو ان پر حاجت کو۔ اب جب ٹریول کرتے ہیں تو اگر سواریاں نہ ہو، گاڑیاں نہ ہو، سامان کہاں رکھ کے لے کے جائیں گے؟ پیدل چل کے جائیں گے کیا؟ فی صدورکم، ان حاجات کو جو تمہارے سینوں میں، یعنی جہاں تم جانے کا ارادہ کرتے ہو وہاں تک تمہیں پہنچاتے ہیں۔ وعلیہ علی الفلک تحملون، اور ان پر یعنی جانوروں پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو۔ اس وقت دو ہی ٹرانسپورٹیشن تھی بظاہر دیکھنے میں، اور اب بہت ساری ہیں۔ وہ یریکم آیاتی، اور وہ دکھاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں، پس کون سی اللہ کی نشانیوں کا تم انکار کرو گے؟ افلم یسیروا فی الارض، کیا بھلا نہیں وہ چلے پھرے زمین میں تو وہ دیکھتے کس طرح ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، کانوا اکثر منہم واشد قوہ، تھے وہ کثرت سے ان میں اور زیادہ شدید تھے قوت میں اور آثار کے اعتبار سے زمین میں۔ اب یہی بات ہم پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں۔ فما اغنا، تو نہ کام آیا ان کو جو کچھ وہ کمائی کرتے تھے۔ فلما جاءتهم رسل بالبینات، تو جب آئے ان کے پاس ان کے رسول روشن دلائل کے ساتھ، تو وہ خوش ہوئے ساتھ اس کے جو ان کے پاس تھا علم میں سے، اور گھیر لیا ان کو جو تھے وہ جس کا مذاق اڑاتے، یعنی اپنی دنیاوی علم پر ہی تکبر کرتے رہے۔ ابھی یہ والی آیت ہماری زمانے سے بہت میچ کرتی ہے، ہم دنیاوی علم جو ہے نا ہمارے پاس، جو ہماری اپنی سوچ ہے، آج کل ہر بندہ پولیٹیشین ہے، ہر بندہ سائنٹسٹ ہے، ہر بندہ عالم بھی ہے، ہر بندہ ہر کچھ ہے، انٹرنیٹ کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے، تو وہ اسی پہ بس وہ حدیث کے آگے بھی اپنی بات رکھ دیتے ہیں، وہ میم میخ نکالتے ہیں قرآن میں، میم میخ نکالتے ہیں اسلامی تعلیمات میں، کیوں؟ کیونکہ اب وہ اپنے علم کی وجہ سے ہر بندہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگا ہے۔ فلما رأوا، پھر جب انہوں نے دیکھا ہمارا عذاب، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اللہ پر، اکیلے اسی پر، اور کفر کیا ہم نے ساتھ اس کے جس کو ہم شرک کرتے تھے۔ فلم یکو ینفعهم ایمانهم، اللہ رب العزت فرما رہے پس نہ دیا فائدہ ان کو، پس نہ دیا نفع ان کو ان کے ایمان نے، جب انہوں نے دیکھا عذاب ہمارا۔ سنت اللہ التی، یہ اللہ کا طریقہ ہے وہ جو تحقیق گزر چکا ہے اس کے بندوں میں، یعنی جب آپ عذاب دیکھ لیں، موت کا فرشتہ دیکھ لیں، تو پھر اس کے بعد تو کوئی ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا۔ وخسر ہنالک الکافرون، اور نقصان اٹھایا اسی جگہ کافروں نے، یعنی انجام دیکھ کر توبہ ہر ایک نے کر لینی ہے۔ جب موت کے فرشتے نظر آئیں گے تو جو سیاہ چہرے والے ہوں گے تو ان کو دیکھ کے، یہ بھی ایک تفسیر ہے نا کہ کرسچنس کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے بندے ہیں، حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، لیکن اس وقت اس پتہ چلنے کا یا اس اقرار کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سورہ حامیم سجدہ دیکھیں گے ہم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، حامیم نازل کرنا ہے رحمان رحیم کی طرف سے ایک کتاب ہے، کھول کر بیان کی کہ اس کی آیات قرآن میں عربی میں ہے، ایک قوم کے لیے جو علم رکھتی ہو، یعنی عربی جانتے تھے وہ لوگ، عرب دان تو تھے، زبان ہی تو تھی ان کے بعد اور کچھ نہیں تھا، بس زبان تھی۔ بشیر و نذیرہ، خوشخبری دینے والا، قرآن کی بات ہے کہ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشیر و نذیر تھے، قرآن بھی بشیر و نذیر ہے، خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا۔ فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، تو روگردانی کری ان میں سے اکثر نے، پس وہ سنتے نہیں ہیں۔ ہمارے دور میں بھی یہی ہے، اور سب سے زیادہ کہا جائے قرآن پڑھا جاتا ہے
दूसरी किताबों के मुकाबले में तो हाँ ऐसा ही है। और सबसे ज्यादा कुरान पढ़ के भी नहीं पढ़ा जाता, तो ये भी ठीक है। सबसे ज्यादा अरबी में पढ़ रहे पीछे आया ना अरबी जबान में, बस पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं, कुछ नहीं पता क्या लिखा है, क्या समझा रहे हैं अल्लाह, क्या मकसद है। सवाब उस पर भी मिलेगा इंशाल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना। और वैसे भी कुरान के अपने अल्फाज हैं, उसको जो अरबी के अल्फाज हैं उसको पढ़ने से गफलत दूर होती है, अल्लाह से कनेक्शन बनता है। उसकी अपनी एक तासीर है, मैं उसकी इनकारी नहीं हूँ, मगर उसको समझ के पढ़ना कितना जरूरी है। और फिर कुछ तो और बदकिस्मत है, वो तो अरबी में भी नहीं पढ़ते। वो तो कहते ही नहीं हमारे पास वक्त ही नहीं है। अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे ना कयामत में कि मेरी कौम ने कुरान को महजूरा कर दिया, पीठ के पीछे फेंक दिया था, या अल्लाह मेरी कौम ने पढ़ा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे खिलाफ, हम में से बहुत सौ के खिलाफ भी गवाही देंगे, ये पता है आपको ये बात? कुरान हमारे खिलाफ, हम में से बहुत सौ के खिलाफ गवाही देगा कि इन्होंने पीठ पीछे फेंक दिया अपनी कुरान को। फ़अरद अक्सरहुम, तो रूगर्दानी की इनमें से अक्सर ने, बस वो सुनते नहीं है। अभी यहाँ पे खास करके बात कुफारे मक्का की हो रही है, और डेफिनेटली हमारी भी बात है। वक़ालू क़ुलूबुना फ़ी अकिन्ना, और वो कहते हैं दिल हमारे पर्दे में है इससे जिसकी तरफ तुम हमें पुकारते हो, यानी तौहीद हमें समझ नहीं आती है, हमारे दिलों पे गिलाफ है, हमारे दिल में नहीं जाती है तौहीद। और हमारे कानों में गिरानी है यानी बोझ है, और हमारे दरमियान और तुम्हारे दरमियान एक हिजाब है। फामल इन्ना आमिलून, बस अमल करो तुम, हम भी अमल करने वाले हैं। यानी पहले खूब तकब्बुर से बात कर ली, और उसके बाद बोलो देखो भाई हमारी तुम्हारी तो दाल, तुम्हारी दाल हमारे पास नहीं गलनी। तुम जो तौहीद कहते हो हमारी अकल से बाला तरे, हम नहीं इसको पसंद करने वाले ना सिलेक्ट करने वाले। तुम अपना काम करो, हम अपना काम करें, हमारे काम में टांग ना अड़ाओ, ये अंदाज है। कुल इन्नमा अना बशर मिस्लुकुम, कह दीजिए कि बेशक मैं इंसान हूं तुम्हारी मानिंद, वही की जाती मेरी तरफ के बेशक अल्लाह तुम्हारा इलाह एक ही है। बस तकीयूं, तो सीधे चलो इसी की तरफ, और बख्शिश मांगो इससे, और हलाकत है मुशरिकों के लिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी अपना काम कर रहे हैं। अल्लज़ीना ला यतून ज़कात, वो लोग जो नहीं अदा करते ज़कात। तो मक्के में ज़कात फर्ज नहीं हुई थी, मुराद है तस्किया। मतलब तुम्हें गलत अकीदा आ गया है, इसको निकाल के सही अकीदा ले आओ, ये तस्किया कहलाता है ना, कि बुरी चीजें निकालना अच्छी चीजें डालना। वहम बिल आखिरती हम काफिरून, दूसरा क्या मसला था, वो आखिरत के साथ इनकारी हैं। इन लजीना आमनु व अमिलुस सलिहात, बेशक वो लोग जो ईमान लाए उन्होंने अमल किए अच्छे, इनके लिए अजर है ना खत्म होने वाला, गैर ममनून, कंटिन्यूस अजर। मतलब आपके पास एक चीज मुस्तकिल आए जा रही है, जब पेंशन आती है किसी की हर महीने आती है, उसकी बड़ी उम्मीद होती है कि ये काम निकलेगा ये काम निकलेगा, सैलरी आती है, तो वहां अजर है गैर ममनून, कंटिन्यूस। कुल इन्नकुम लतकफुरून बिल्लज़ी खलक़ल अर्ज़ फ़ी यौमैन, कह दीजिए क्या बेशक तुम अलबत्ता तुम कुफ्र करते हो इस हस्ती के साथ जिसने पैदा किया जमीन को 2 दिनों में, और तुम बनाते हो इसके लिए शरीक। ज़ालिका रब्बुल आलमीन, ये रब है तमाम जहानों का, और इसी ने बनाए इसी में पहाड़ और इसके ऊपर से, और बरकत डाली जमीन में, और मुकद्दर की इसकी पैदावार 4 दिनों में। सवाअल लिस्साइलीन, बराबर है सवाल करने वालों के लिए, यानी सिर्फ इंसान के लिए नहीं, एक एक छोटे से छोटा कीड़ा मकोड़ा सबका जमीन पर हक है। अल्लाह ने क्या किया, रवासी मिन फौकिहा बारक फीहा कद्दर फीहा अक़वातिहा, उसकी जो कुव्वतें थी ताकतें हैं, उस पे जो अनाज उग रहा है, जो पानी, हर एक चीज को हर एक के लिए रखा है। लिस्साइलीन, सवाल करने वाले के लिए। हम तबीयत से कचरा फेंकते हैं, हम तबीयत से मछलियां पकड़ रहे हैं। शार्क का जो फिन है उसका सूप बनता है, तो वो बहुत महंगा सूप होता है। उसके लिए लाखों शार्क मछलियां मार के हमने जो है ना समंदरों में फेंक दी। वो शार्क का फिन काटते और मछली वापस फेंक देते हैं, क्योंकि उन्हें जगह इतनी है ना कि फिन ही रखने मछली का गोश्त, क्योंकि वो भी बहुत महंगा है, लेकिन वो फेंक देते हैं। वजह क्या है, कि बस वो सूप पीना चस्के। सुम्मस्तवा, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत मुतवज्जे हुए आसमान की तरफ, और वो धुआं था, वही दुखान। फ़क़ाल लहा वलिल अर्दि इतिया तौअन औ करहा, तो अल्लाह ने कहा उससे और जमीन से कि तुम दोनों आ जाओ, खुशी से या नाखुशी से, चॉइस दी है। ठीक है, तो हर एक में शऊर है। ये आपके आगे कोई लैपटॉप रखा है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स है, इनमें भी शऊर है। ये बात सुन रहे होंगे हमारी, हम अल्लाह का तस्करा कर रहे हैं। हर एक चीज में शऊर है। अल्लाह ने जमीन और आसमान को चॉइस दी कि खुशी से आओ या ना खुशी से। कौलता, उन दोनों ने कहा कि हम फर्माबरदारों की तरह आते हैं। यानी जब दुनिया तख्लीक की जा रही थी तो नेब्यूला टाइप की थी, जो यहाँ पे आ रहा है ना दुखान, यानी छोटे छोटे जर्रात पर मुश्तमिल धुआं सा था। धुआं, दुखान बिन धुआं, साइंस अब इसको साबित करती है, कुरान ने तो पहले ही बता दिया। फकदा हुन्ना, तो इसने मुकर्रर कर दिया इनको 7 आसमान 2 दिनों में, और वही की हर आसमान पर इसका काम। वज़य्यन समात दुनिया में मसाबीन, और खूबसूरत बना दिया हमने आसमान को, दुनिया आसमानी दुनिया को चिरागों के साथ। ये सारे रिसर्च के टॉपिक हैं कि 2 दिन में ये हुआ, 4 दिन में ये हुआ। अल्लाह रब्बुल इज्जत फिक्स करके चीजें बता रहे हैं कि अब हमारा काम है हम रिसर्च करें इसके ऊपर। वह हिफ्ज और हिफाजत के लिए। तो 7 आसमान में से जो दुनिया का आसमान है वो डेकोरेटिव है, उसको सजाया अल्लाह ने हमारे लिए, क्योंकि हमें नजर आता है। बाकी आसमान हमारी विजन में नहीं है, अल्लाह ही जानता है उनकी क्या हकीकत है, तो उसके सजाने की बात अल्लाह यहाँ नहीं कर रहे। फइन आरदू, फिर अगर वो मुंह मोड़ते हैं तो कह दीजिए कि मैं डराता हूँ तुमको अजाब से, मानिंद अजाब के कौम आद के और समूद के। इस जाअतहुम रुसुलुहुम,
मिन बैन ऐदीहिम, जब आए इनके पास कई रसूल, इनके आगे से और इनके पीछे से, कि ना तुम इबादत करो मगर अल्लाह की। उन्होंने कहा अगर चाहता हमारा रब अलबत्ता उतार देता फरिश्ते। फइन्ना बिमा उरसिलतुम बिही काफिरून, तो बेशक तुम जो चीज लेकर आए हो, तुम जिस चीज के साथ आए हो उसके तो हम इनकारी हैं। फमा आद, तो रहे आद, फस्तकबरू, तो उन्होंने तकब्बुर किया, फिल अर्दी, जमीन में, बगैर हक, बगैर हक के। वकालू मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, और उन्होंने कहा कि कौन ज्यादा शदीद हो सकता है हमसे कुव्वत में। हम ये देख चुके हैं बारह के कौम आद के मर्द जो थे, जो लोग थे, मर्द औरतें, वो बहुत मजबूत थे। अवलम यराओ, क्या भला उन्होंने देखा नहीं कि बेशक अल्लाह ताला वो जात है जिसने पैदा किया है इनको, वो ज्यादा शदीद है इनसे कुव्वत में। वकानु भी आयातिना यजहदून, और थे वो हमारी आयत का इनकार करते। फरसलना अलैहिम रीहा, तो भेजा हमने इन पर एक हवा को सरसरा, बहुत ही तेज, ठंडी और शोर वाली। ठंडी हवा इंसान को क्या करती है, ठिठर के एक जगह बिठा के बैठ देती है। हो ताकत, एनर्जी, लंबे चौड़े, क्या करोगे अब इतनी सर्दी है। फी अय्यामिन नहिसात, मनहूस दिनों में, 7 रातें 8 दिन चली थी ना, तो उनको मनहूस दिन कहा जा रहा है। नुज़िक़हुम अज़ाबल ख़ज़ी, ताकि हम चखाएं इनको अजाब रुसवाई का दुनिया की जिंदगी में, और अलबत्ता अजाब आखिरत का ज्यादा रुसवा कुन है। वहुम ला युनसरून, और वो मदद ना दिए जाएंगे। वअम्मा समूद, और रहे समूद, फहदैनाहुम, तो हमने हिदायत दी इनको, तो उन्होंने तरजीह दी, इन्होंने तरजीह दी अंधेपन को हिदायत पर, तो पकड़ लिया उनको चिंगाड़ ने। ये पहाड़ों में घर बनाए थे तो जलजला आया, जलजले में शोर होता है ना, हजरत जिब्राइल ने एक चीख मारी थी, ये भी कहा जाता है। तो पकड़ लिया इनको चीख ने, अजाब की, रुस्वा कुन, बवजह इसके जो थे वो कमाई करते। वरना जैन लजीना आमनू कानू यत्तकून, और निजात दी हमने लोगों को जो ईमान लाए और थे वो तकवा इख्तियार करते। व यौम युहशरु आदाउल्लाहि इलन नारि फहुम यूज़ऊन, आदाउल्लाहि इलन नार, और जिस दिन इकट्ठे किए जाएंगे दुश्मन अल्लाह के आग की तरफ, तो वो जमा किए जाएंगे। अब ये सारे के सारे एक जैसे हरकतों वाले जमा हो जाएंगे सब। हत्ता इज़ा मा जाऊहा, यहाँ तक कि जब वो इनके पास आ जाएंगे गवाही के देने के लिए इनके खिलाफ, इनके कान और इनकी आंखें और इनकी खालें, बवजह इसके जो वो अमल करते थे, जिसम के आज़ा ही गवाही देंगे। वक़ालू लिजुलूदिहिम, और वो अपनी खालों को कहेंगे लिमा शहीदतुम, तुमने क्यों गवाही दी अलैना, हमारे खिलाफ। कालू अनतकना अल्लाहु लज़ी अनतक़ा कुल्ला शै वह खलक़कुम अव्वल मर्रतिन व इलैहि तुरजऊन, तो खाले कहेंगी बुलवाया हमको उस जात ने जिसने बुलवाया हर चीज को, और उसी ने पैदा किया तुमको पहली बार, उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। तो हमारे जिस्म, हमारी खालें, अब साइंस कहती है कि खाल सारे साउंड एब्जॉर्ब कर रही है। कुरान ने पहले ही बताया कि खाल जो है वो रिकॉर्ड कर रही है सब कुछ, वो गवाही देगी। गवाही वही देता है ना जो रिकॉर्ड कर रहा है, देख सुन रहा है। तो सुन रहा है तो बंदा रिकॉर्ड देगा ना, तो गवाही देगा। तो खाल जो है वो सब कुछ सुन रही है और वो गवाही देगी। और डरने वाली बात है, क्योंकि ये वो आज़ा है जो अकेलेपन में हमारे साथ होते हैं। ये बात है इसमें पॉइंट क्या है, इसमें पॉइंट ये है कि सबसे छुप के गुनाह कर ले बंदा, इनसे कैसे छुप के गुनाह करे। और इन्हीं के लिए गुनाह करता है इंसान, इन्हीं आज़ा को रिलैक्स करने के लिए गुनाह करता है, तो यही गवाही दे देंगे आखिरत में। वमा कुंतुम तस्ततीरून, और ना थे तुम छुप सकते कि गवाही देते तुम पर तुम्हारे खिलाफ कान तुम्हारे और तुम्हारी निगाहें और तुम्हारी खालें, लेकिन गुमान किया तुमने कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ला यालम, नहीं जानता बहुत कुछ इनमें से जो तुम अमल करते हो। यानी लोगों से छुपकर जब तुम काम कर रहे थे तो तुम भूल गए कि अल्लाह तो देख रहा है तुम्हें। इसलिए हमारे लिए भी है, मुसलमानों में से, हम में से तन्हाई को पाक रखना, क्योंकि पहाड़ जैसी नेकियां होंगी और वो गुबार हो जाएंगी। वजह क्या होगी कि तन्हाई में ख्वाहिश नफ्स के पीछे लग गए। तन्हाई में किए जाने वाले गुनाह देखिए कितने खतरनाक है, क्योंकि जो गवाही दे रहे हैं ना, गवाही तो सबके सामने होंगी ना, तो जिस्म के हिस्से ही गवाही देंगे, इससे ज्यादा क्या हसरत होगी। वज़ालिकुम ज़न्नुकुम अल्लज़ी ज़ननतुम बिरब्बिकुम, और ये गुमान है तुम्हारा वो जो तुमने गुमान किया अपने रब के साथ, इसने हलाक किया तुमको, तो हो गए तुम खसारा पाने वालों में। नहीं, तुमने, तुम्हारे गुमान ने तुम्हें हलाक कर दिया। अल्लाह से अच्छा गुमान रखना चाहिए। एक तुम्हारा ये गुमान है अल्लाह की पकड़ नहीं होगी, और पकड़ नहीं होगी तो ये झूठा गुमान है, ये धोखा है। और एक ये कि अल्लाह से अच्छा गुमान इस सेंस पे रखे कि नहीं, गलती हो गई अल्लाह माफ फरमा दे, मैं आपकी रहमत में पूरा भरोसा करती हूँ, आप मुझे माफ फरमाएंगे। वही हस्बिर, फिर अगर वो सब्र करें तो आप ठिकाना है इनका, और अगर वो तौबा करें तो नहीं, वो उजूर कबूल किए जाएंगे। मरने के बाद है, जिंदगी में तो बंदा तौबा कर ले कबूल होती है। वक़य्यदना लहुम कुराना, और मुकर्रर किया हमने इनके लिए साथी, तो उन्होंने खुशनुमा बना दिया इनके लिए जो कुछ इनके सामने था और जो कुछ इनके पीछे था। और हक हो गई इन पर बात, गुरोहों में से तहकीक गुजर चुके इनसे पहले, जिनों में से और इंसानों में से बेशक थे वो खसारा पाने वाले। क्या बात हो रही है, बात ये हो रही है कि मुजरिमीन जो होते हैं ना, कय्यदना, अल्लाह चिपका देते हैं इन पर कुराना। करीन कहते हैं उस शैतान को भी करीन कहा जाता है जो हर बंदे के साथ एक एक है। करीन भी कहते हैं उसको, वो हर वक्त साथ रहता है, उसका काम है मुस्तकिल बहकाना हमें, वसवसे डालना। तो वो चिपका देता है अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर ऐसे मुजरिमों के साथ। और वो करीन क्या करते हैं, खुशनुमा बना देते हैं माँ बैना ऐदीहिम, जो उनके सामने, सामने की चीजें क्या है, दुनियावी उमूर ख्वाहिशात की इत्तिबा में लग जाता है बंदा। बस उसको ये नहीं होता कि मैं, मुझे करना क्या चाहिए, अच्छा अब ये इवेंट आ रहा है, चलो चलो ये वाला काम कर ले, अच्छा अब ये आ गया, चलो चलो ये वाला काम कर ले, उन्हीं में दुनिया में ही उलझा रहता है। वमा खल्फम, और जो कुछ पीछे है उसमें क्या, आखिरत को बुलवा देता है। पीछे बिल्कुल मौत चिपकी हुई है हमसे, बिल्कुल करीब है मौत हमारे।
تو وہ قرین کیا کرتا ہے، اس موت سے بالکل فراموش کر دیتا ہے، ہمارے ذہنوں میں خیال نہیں آتا کہ مر کے جانا ہے ہم نے، قبر ہے ہمارے آگے، ایسی کون سی تیاری میں اسپیشلی قبر کی کر رہی ہوں، ابھی ویکیشن ہو جائے پاکستان جانا ہو تیاری کرتے ہیں، گھر میں شادی تیاری کر رہے ہیں، کوئی ایونٹ آ رہا تیاری کر رہے ہیں، مہمانوں کو بلا رہے تیاری کر رہے ہیں، میں آپ اپنے آپ سے تو پوچھے ذرا، 50,000 سال کا دن ہوگا، سایہ چاہیے ہوگا، کون سی تیاری میں سے اسپیشلی کر رہی ہوں کہ مجھے سایہ چاہیے، سائے کے لیے میں سورہ بقرہ کو حفظ کر لوں، یا روز پڑھا کروں، سورہ آل عمران پڑھا کروں، چھپا کے صدقہ دیا کروں، یہ بھی سایہ ملے گا، انصاف والی بات، میں کوئی کر رہی ہوں تیاری؟ یا قبر میں روشنی چاہیے، قرآن آ جائے قبر میں اتر کے تو میں قرآن کو لازم ٹائم دوں، میری زندگی میں کوئی دن نہ ہو جس دن میں نے قرآن نہ کھولا ہو، کچھ نہ کچھ حصہ نہ پڑھا ہو، کیا میں تیاری کر رہی ہوں؟ نہیں تیاری کر رہے، کیونکہ کریم نے ہمیں بلوا دیا کہ موت تو بالکل پیچھے چپکی کھڑی ہوئی ہے، وہاں کا علیہم القول، اور حق ہو گئی بات ان پر گروہوں میں سے، جو جنوں اور انسانوں میں، یعنی جنوں اور انسانوں میں جو نافرمان ہوئے، وہ جہنم سے ان کو بھر دیں گے اللہ، اللہ نے یہ بات فرمائی ہے، ہم 2-3 دفعہ ابھی تک پڑھ چکے ہیں قرآن میں، بھی پھر آگے بھی آ جائے گی یہ بات، تو یہ انہم کانوا خاسرین، وقال الذین کفروا، تو کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، نہ تم سنو اس قرآن کو، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسروں کو قرآن سنانے لگتے ہیں حج کے موقع پہ، یا ویسے جب لوگ آتے ہیں مکہ، تو یہ کفار کیا کرتے، کہتے ہیں جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھنے لگے تو ایک تو سننا نہیں ہے، اور دوسرا والغوا فیہ، شور مچاؤ کہ اگلا بندہ بھی نہ سن سکے، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب ہو، تغلبون سوری، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب ہو جاؤ، یعنی غالب آنے کے لیے قرآن کے ٹکر کا تو کچھ نہیں لا سکتے تھے، تو سننا ہی نہ ہو، یہ صحابہ کرام کے ساتھ بھی ہوتا ہے نا، حضرت ابو بکر صدیق کے قرآن پڑھ کے سننے پہ بھی لوگ ایمان لائے، حضرت ابو بکر صدیق پہ پابندی لگائے، انہوں نے کہا اپنے گھر میں قرآن پڑھیں گے، یہاں نہیں قرآن پڑھیں گے، انہوں نے گھر میں چھوٹی سی جگہ بنا لی، اب دیکھ وہ بہت ماڈرن سٹی تو تھا نہیں، وہ تو چھوٹی چھوٹی تھی دیواریں ٹائپ کی ہوتی تھی، پردے لٹکے ہوتے تھے، تو وہ جو دیواریں تھیں تو ان میں حضرت ابو بکر قرآن پڑھتے رات کو، اور وہ بڑے بکا تھی ان کی آواز میں، بڑے ہل تھا، بردباری تھی نا ان میں، آپ ان کی پرسنالٹی سمجھ ہی سکتے ہیں کس طرح کے تھے وہ، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کفار کی عورتیں بچے رات کو آ کے کھڑے ہو جاتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رات کو قرآن پڑھتے تھے، سنتے تھے، تو وہ الغوفی کہ اس میں ذرا شور مچاؤ کوئی سن نہ پائے، فلنذیقن الذین کفروا عذابا شدیدا، بس البتہ ضرور ہم چکھائیں گے لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے شدید عذاب، اور البتہ ہم ضرور جزا دیں گے ان کو بدترین اس چیز کی جو تھے وہ عمل کرتے، ذالک جزاء اعداء اللہ النار، یہ بدلہ ہے اللہ کے دشمنوں کا آگ، ان کے لیے ہے اس میں ہمیشگی کا گھر، بدلہ ہے بوجہ اس کے جو تھے وہ ہماری آیات کے ساتھ انکار کرتے، وقال الذین کفروا، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، اب وہاں پہ ایک اور طرح کی حسرت، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ہمارے رب ہمیں وہ لوگ دکھا، اور جنہوں نے ہمیں بھٹکا دیا، انسانوں میں سے جنوں میں سے نہیں، وہ جنہوں نے ہمیں بھٹکایا، چاہے وہ انسانوں میں سے تھے یا وہ قرین تھا، شیطان تھا، یا جو بھی تھا جنہوں نے ہمیں بھٹکایا، نجعلہما تحت اقدامنا، ہم ان کو اپنے پیروں کے نیچے مسل کے رکھ دیں، ہم انہیں اپنے پیروں کے نیچے کچل دیں، لیکون من الاسفلین، تاکہ وہ سب سے نچلوں میں ہو جائے، یعنی ایکسٹریم رویہ ہے، کسی چیز پہ بہت غصہ آتا ہے نا، اور افسوس بھی ہو، ایک تو غصہ ہے اور ایک افسوس بھی ہو، تو اس پہ کیا کرتا ہے، دل کرتا ہے اس کو کچل کے رکھ دیں ایسے لوگوں کو جنہوں نے ہمیں یہ نقصان میں ڈال دیا، ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ جم گئے اس بات پر، استقامت اختیار کر لی، تتنزل علیہم الملائکہ، اترتے ہیں ان پر فرشتے، تو یہ صرف کہنا لا الہ الا اللہ کہنا، اور اس پر جم جانا، اس پہ قائم رہنا، اب اس ماحول میں دیکھیں جہاں پہ مارا پیٹا جا رہا ہے، ماں باپ ناراض ہو رہے ہیں بچوں سے کہ چھوڑو توحید کو، وہاں پہ اسپیشلی یہ آیت، اور ویسے بھی ساری زندگی لا الہ الا اللہ پر جو لوگ جم کے زندگی گزارتے ہیں نا، تو جیسا موت کا وقت ہے مثال کے طور پر، تتنزل علیہم الملائکہ، تو موت کے وقت فرشتے آ جائیں گے تسلی دینے کے لیے، قبر سے نکلیں گے تو فرشتے آ جائیں گے کہ ہم ہیں تمہارے ساتھ، یہ گھبراہٹ کا دن ہے، گھبراؤ نہیں، ہم تمہیں لینے آئے ہیں، تتنزل اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے کسی طرح، تتنزل علیہم الملائکہ، اترتے ہیں ان پر فرشتے، لا تخافوا، کہ نہ تم ڈرو، ولا تحزنوا، نہ تم غم کرو، وابشروا بالجنہ، اور خوشخبری پاؤ جنت کی، التی کنتم توعدون، وہ جو جس کا تم وعدہ کیے جاتے تھے، تو یہ صرف یہ ایونٹس پہ نہیں ہوتا، موت کوئی خوف آ جاتا ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو دل میں خیال سے آ جاتے ہیں کہ نہیں یار اس پریشانی کے بدلے اللہ جنت دے گا، یہ بھی تتنزل الملائکہ ہے، اللہ کی مدد آتی ہے، یعنی ایسے لوگوں کو پیچھے کرین تھا نا، کمپیریزن چل رہا ہے، پیچھے کرین جو ہے شیطان جو ہے وہ زینہ کر دیتا ہے اعمال، دنیا میں الجھا کے رکھتا ہے اعمال، موت بھلا دیتا ہے، پھر جو ان ربنا اللہ ثم استقاموا ہوتے، جو یہ لوگ ہوتے تو ان کے دوست کون بن گئے، فرشتے بن گئے، ہر اسٹیج کو انہیں سنبھال رہے ہیں، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ، اور کیا کہتے ہیں فرشتے، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی، یعنی چھوڑیں گے نہیں تمہیں،
तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पे जमे रहो, जो मुश्किल आएगी हम खड़े हैं तुम्हारे साथ, तुम्हारा बाजू बन के। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, और आखिरत के हवाले से जन्नत में, और तुम्हारे लिए इसमें वो है जो चाहेंगे तुम्हारे नफ्स, और तुम्हारे लिए इसमें है वो जो तुम मांगोगे। नुज़ुलुम मिन गफूर, मेहमानी है गफूर रहीम की तरफ से, यानी सिर्फ एडिशनल नुजुल क्या होता है, चाय पानी, और खाना पीना ज़ियाफत होता है। तो ये इतनी कंफर्ट जोन्स, कंफर्ट्स जो दिए जा रहे हैं, ये तो सिर्फ नुजुल की तरह है। अभी असल जन्नत क्या है, वो तो उसका तो तुम सोच भी नहीं सकते। वमन आसन कौलम मिम्मा दआ इलल्लाह, और कौन ज्यादा अच्छा है इस बात से जो बुलाए अल्लाह की तरफ और अमल करे अच्छे। वकाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, और कहे कि बेशक मैं मुसलमान में से हूँ, यानी अपने मुसलमान हो पर इज्जत और फख्र करे। अगर हिजाब लगाकर आप किसी वेस्टर्न कंट्री पे जा रही हैं तो शर्माई शर्माई ना फिरे, परेशान परेशान ना फिरे, कॉन्फिडेंस अपना खत्म नहीं करें। वमन अहसन कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो अल्लाह की तरफ बुलाते हैं लोग, अच्छे अमल करते हैं और उन्हें परेशानी नहीं होती इस बात पे कि हम मुसलमान हैं। आज हम मुसलमान कहाँ पे हैं, हम क्योंकि 911 के बाद से बाकायदा एक स्टेज बन चुका है हमारे लिए, और कुछ हमारी हरकत भी कुछ कुछ की ऐसी है, सब तो नहीं है, बहुत तकवे वाले भी हैं हम में। और जितना काम हम मुसलमान, स्पेशली अजमी मुसलमान कर रहे हैं इस्लाम के हवाले से, डॉक्टर जाकिर नाइक को ले लें, फरहत हाशमी को ले लें, इसरार अहमद अपनी जगह एक कमाल थे, फिर आप ये देखें नोमान साहब को ले लें, इंग्लिश में इतना अच्छा काम किसी ने मेरी नज़र से नहीं गुजरा जो नोमान साहब कर रहे हैं। तो आप ये देखें कि ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छे। तो वो मिम्मन दआ इलल्लाह, अल्लाह की तरफ जो बुलाए, व अमिल सालिहन, अच्छे अमल करे, वकाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, और इनमें से अक्सर ऐसे हैं जो ऐसे मुल्कों में जहाँ रेजिस्टेंस है लेकिन वो जमे हुए हैं, वो इस चीज पे बिल्कुल इत्मीनान में कि हम मुसलमान हैं, वो घबराते नहीं है, कॉन्फिडेंस उनका जाता नहीं है। और ये हमारे लिए भी है, जो मैंने भी आपको मिसाल दी, कि आपको किसी ऐसी सिचुएशन का सामना पड़ जाए जहां मुसलमान होने की वजह से आपको शर्मिंदगी महसूस हो जाए, होने लगे, कभी शर्मिंदगी महसूस ना करें। जब औरतें बिकनियां पहन के बैठी हुई हैं, बरहना होकर बैठी हुई हैं, और उनके कॉन्फिडेंस का ये हाल है कि वो मर्दों के बीच में आके खड़ी हो जाती है, तो हम हिजाब लगाने की वजह से हम परेशान हो कि हम इस गैदरिंग में आ गए, यहाँ किसी ने हिजाब नहीं पहना हुआ, या हम इस टूरिज्म पे निकले हुए तो यहाँ पे मैं अकेली हूँ गाउन वाली। नहीं, कभी नहीं, इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। अपने मुसलमान होने पर इज्जत और फख्र महसूस करना चाहिए। वला तस्तविल हसनतु वला सय्यअ, और नहीं बराबर हो सकती भलाई नेकी और ना बुराई, यानी जजा में अंजाम, नौयत, नेचर हो ही नहीं सकता, बिल्कुल अलग अलग है। इत्फा बिल्लती ही आसान, तो दूर करो बुराई को भलाई से, बुरी चीज को अच्छे तरीके से दूर करो। इस टॉपिक पे हमारी पहले भी बात हो चुकी है, और ये दूसरे के बुरे रवैये को देखकर अच्छे रवैये से उसको डील कर लेना, कोई मुखालफत करे तो बर्दाश्त कर जाए, कोई बुराई है तो खामोश हो जाए, कोई बुरा इल्जाम लगाए तो बदले में बढ़ चढ़ कर उसके ऊपर डबल बुरा इल्जाम ना लगाएं, सब्र हौसला रखें, बुराई का जवाब बुराई से ना दें। ऐसे माहौल में अल्लाह दीन के काम को परवान चढ़ाता है। जहां आपस में बहस मुबाहिसे हो रहे हो, दीन का काम आगे नहीं बढ़ सकता। लाजिम दीन के काम के लिए आपको अपने ऊपर कुछ झटके एब्जॉर्ब करने पड़ेंगे, शॉक एब्जॉर्बर बनना पड़ेगा, तो फिर दीन का काम आगे हो सकता है, दीन आगे नहीं जा सकता। तो ये रवैया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दीन के हवाले से, क्योंकि ऊपर दीन की बात हो रही है ना, वो मन अहसन कौलन मिम्मा दआ इलल्लाह, और फिर डे टू डे लाइफ में, खानदान की लाइफ में, माशरे की लाइफ में, पड़ोसी अच्छा बनने के लिए, अच्छी बहू बनने के लिए, अच्छी बीवी बनने के लिए फॉर्मूला बहुत जरूरी है। इत्फा बिल्लती ही हसन, फइदल्लती बैनका व बैनहु अदावतन अदावतुन अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम। और ये रवैये पे चलेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाने, बहुत ठोस बात है। तो दफतन, वो शख्स जिसके तेरे दरमियान और जिसके दरमियान अदावत है, तो गोया वो ऐसा हो जाएगा जानिसार दोस्त। कोई आपके साथ बुरा करे और आप उसके साथ भला करें, यकीन जाने वो जो फर्मा बरदारी ऐसे बंदे से मिलेगी ना आपको, तो जो आपके साथ अच्छा करता है उसके साथ अच्छा करते हैं, वहां से वो फर्मा बरदारी नहीं मिलेगी। आपकी पड़ोस बिल्डिंग में, आपकी पड़ोस में, आपके खानदान में कोई ऐसा है जिसको बहुत जरूरत है आपकी, और वो आपके साथ बहुत टेढ़ा था, कोई आपकी नंद है, कोई सास है, आपको तंग किया है, या आपकी कोई बहू है जिन्होंने आपको बहुत तंग किया है, और अब वो बीमार है, उनको आपकी जरूरत है, आप कहें लब्बैक मैं हाजिर हूँ। उसके बाद जो उनके दिल में आपके लिए मोहब्बत आएगी ना, वो दुनिया जहान के खजाने को खर्च कर दे, वो मोहब्बत नहीं आ सकेगी जो आपके उस बिहेवियर पे उस वक्त कुर्बानी देने से आ जाएगी। तो ये बहुत सॉलिड बात है। आयत नंबर 34 की बात कर रही हूँ मैं। वमा युलक्काहा इल्ला लजीना सबरू, अब ये बुराई को भलाई से दूर करना, ये काम भी है बहुत बड़ा, जी गुर्दा जिसे कहते हैं ना, मारना पड़ेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, नहीं डाला जाता इसको मगर इन लोगों पर जो उन्होंने सब्र किया। तो सब्र है पहली शर्त। और दूसरी क्या चीज होना चाहिए, वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, और दूसरी बड़ी खुशकिस्मत होते हैं ये जो ये हासिल कर लेते हैं। युलक्काहा, मुलाकात करवाई जाती है, डाला जाता है इसको,
जो जिनका नेचर ऐसा होता है ना, हकीकतन वो बहुत खुशकिस्मत है। हम कहते हैं ना दुनिया में ये खुशकिस्मत है ये बदकिस्मत है, तुम दुनिया को मायार बनाते। तो असल में जू हद्दिन अजीम कौन है अल्लाह के नजदीक? जो सब्र में बहुत आगे हो, इस हद तक आगे हो कि बुराई का बदला भलाई से दे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक ही तो अच्छा था। एक दफा एक बूढ़ी औरत मिली, मक्के में दाखिल हो रही थी, तो वो बहुत सारा वजन उठाई हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा चलो मैं आपको छोड़ता हूँ, कहाँ जाना है। वजन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठा लिया, रास्ते में बातें करने लगी। जो बुरा कहे जाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो बुरा कहे जाए, मैंने सुना है कि ऐसा शख्स है, जादू है, काहिन है, साहिर है, और ये है और वो है और वो है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुस्तकिल बुरा कहती जा रही थी। जब पहुंची, सामान उसका डिलीवर किया, और समाओ जब उसे पता चला तो इसका क्या मामला होगा। ऐसी एक औरत बूढ़ी थी जिसकी तीमारदारी के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते थे। तो वमा युलक्काहा इल्ला साबिरून वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हद्दिन अज़ीम वमा यंज़गन्नका, और अगर वसवसा आए तुझको, ये काम आपको शैतान नहीं करने देगा। उन्होंने तो मेरे साथ ऐसा बुरा किया, मैं क्यों उनके साथ अच्छा करूं। अच्छा हुआ, मजा हुआ, अब इनके साथ ये चीजें आ गई ना, बहुत जबान चलती थी, अच्छा हुआ इनके साथ ऐसे हुआ। ये सारे ख्यालात आएंगे। तो अल्लाह ने फौरन शैतान का तस्करा किया, अगर वसवासा आए तुझको शैतान की तरफ से कोई वसवसा, पस पनाह मांग लो अल्लाह से, बेशक वो सुनने वाला है, जानने वाला है। वमिन आयातिहिल लैलु वन्नहार, और इसी की निशानियों में से है रात और दिन, और सूरज और चांद। और ना तुम सजदा करो सूरज के लिए और ना चांद के लिए, और ना सजदा करो अल्लाह के, और सजदा करो अल्लाह के लिए, वो ज़ात जिसने पैदा किया इनको, अगर हो तुम सिर्फ इसी की इबादत करते। फिर इस्तकबरू, फिर अगर वो तकब्बुर करें, यानी सजदे से इनकार भी तकब्बुर है। फिर अगर वो तकब्बुर करें तो वो हस्ती हैं जो तेरे रब के पास है, यानी फरिश्ते जो तेरे रब के पास है, तस्बीह करते हैं इसके लिए रात और दिन, और नहीं वो थकते। ला यस अमून, थकते नहीं है। तो जब ऐसी आयत आती है तो हम कहते हैं अल्लाह हम भी सजदा करने हैं आपको, तो आयत सजदा है यहाँ। वमिन आयाती है, और उसकी निशानियों में से कि बेशक तुम देखते हो जमीन को दबी हुई है, फिर जब उतारते हैं हम इस पर पानी तो वो हलती हिलती है और फूलती है। इन्नल्लज़ी अहयाहा लमुहयिल मौता, बेशक वो ज़ात जिसने जिंदा किया जमीन को, अलबत्ता जिंदा करने वाला है मुर्दों को। इन्नहु अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक वो हर चीज पर कादिर है। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग जो इल्हाद करते हैं हमारी आयत में, नहीं छुप सकते हम पर। यानी इल्हाद, इल्हाद कहते हैं लहदी, लहद भी होती है ना, कबर बगली कबर भी होती है। तो एक तरफ को हो जाना, इनराफ कमी असल से हट जाना। तो आप ये देखिए कि अल्लाह की आयत में, यानी जैसे अल्लाह ने कहा कि वसीला तलाश करो मेरी तरफ, अब वसीला में तलाश करो मेरी तरफ, अब उसका तर्जुमा क्या कर लिया, इल्हाद क्या है, अपनी मनमानी तफसीर कर ली कि भाई वसीला किसी बुजुर्ग बाबा को वसीला बना लो। जबकि कुरान में, अब इसको हम चेक करेंगे ना सही तफसीर है या नहीं, तो कुरान तो चीख चीख के कह रहा है कि उदूनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं दूंगा, ईया का नाम दो ईया का नस्ताईन, तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। तो कुरान तो कहीं से नहीं कह रहा कि वसीले के तौर पे आप किसी इंसान को या कब्र वाले को बना ले। ये इल्हाद कहलाता है, मनमानी तफसीरें करना, अपने मतलब के मानी निकालना। या दूसरा तर्जुमा ये भी होता है कि ऐसी आयत की ऐसी तफसीर बना लेना कि उंगली उठा सके कोई कुरान पे, उसको गलत साबित करने की कोशिश करना। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अफमन युल्का फिन नारी खैरुन अम्मा यातिया आमीन यौमन यौमल क़ियामा, क्या फिर वो जो भला डाला जाएगा आग में, यानी इल्हाद करने वालों का अंजाम फिर आग है, तो जो कि डाला जाएगा आग में बेहतर है, या जो वो आएगा कयामत के दिन बेखौफ होकर। इअमलू मा शिअ्तुम, चॉइस दी जा रही है, इअमलू मा शिअ्तुम, अमल करो जो तुम चाहो। दो किरदार बता दिए मैंने। कुरान को वैसे ही का वैसा लो जैसा है। कुरान की तफसीर पहले कुरान से होती है और फिर उसके बाद हदीस से होती है। तो कुरान की को वैसे ही लो जैसा है, वैसा ना लो जो हमारे इमाम या कोई हमारे मौलवी साहब या कोई हदीस आ जाए मुकाबले में, उनकी बात के मुकाबले में कोई कुरान की आयत आ जाए, छोड़ दें इमामों को, छोड़ दें इनको, और उसको तफसीर को ले लें। तो इअमलू, तुम्हारे पास चॉइस है, जो रास्ता चाहे इख्तियार करो, माशी तुम, जो तुम चाहो, इन्नहु बिमा तअमलून बसीर, अल्लाह क्या कर रहा है, बेशक जो तुम अमल करते हो वो देखने वाला है। तो फैसला हो जाएगा कयामत के दिन जाके। इन लजीना कफरू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया कुरान के साथ, नसीहत के साथ, जब वो आई इनके पास, तो बेशक अलबत्ता वो एक किताब है जो जबरदस्त है। यानी कुरान जबरदस्त किताब है, अपने दलाइल की वजह से गालिब आने वाली है, बातिल को अपने ऊपर आने नहीं देगी, इस चीज का भरोसा रखो। कुरान को कुरान से तफसीर करो, उसको समझो, हदीस से तफसीर करो, वो अपने अंदर बातिल आने नहीं देगी। अगर तुम बिल्कुल सही दिल से, सही दिमाग से कुरान की तरफ आओगे, तो वो इन्नहु लकिताबुन अजीज, जबरदस्त। अजीज क्या होता है, कुव्वत गलबे वाला। कोई बादशाह अजीज भी होता है ना, कि आप उसके अगेंस्ट नहीं आ सकते। तो कुरान अजीज है, अपने अंदर अजीज है, कोई उसमें कुछ बातिल से फ्रंट से कोई उसमें कुछ डाल नहीं सकता बातिल। तो उसके अंदर कोई अपनी मर्जी की आयत नहीं डाल सकता। तफसीर में गड़बड़ करते हैं, उसके लिए है कि ढंग सीधे तरीके से प्रॉपर चैनल से जाओ उसकी तरफ। ला यातिहिल बातिल, नहीं आ सकता इस पर बातिल, इसके सामने से और ना ही इसके पीछे से। यानी इसमें, इस किताब में, इसके मफहूम मायने में कोई शख्स अपनी तरफ से बना तो सकता है गलती, लेकिन वो खुल जाएगी कि इसने अपने पास से बनाई, ये तफसीर इसमें नहीं है। यानी वो अपने अंदर झूठ को आने नहीं देगा कुरान। ये बताया जा रहा है, चाहे वो आगे से हो या पीछे से हो।
तंजील मिन हकीमिन, मतलब कोई मुस्तकबिल में कोशिश कर ले, किसी ने माजी में कोशिश कर ली हो, किसी भी केस में कुरान को कोई तब्दीली नहीं कर सकता, तब्दील नहीं कर सकता। नाजिल करता है हिकमत वाले, तारीफ वाले की तरफ से। हमीद आ रहा है ना, इतनी जबरदस्त किताब नाजिल कर दी और उसको सिक्योर भी किया जा रहा है, तो फिर अल्लाह की तारीफ बनती है, तारीफ वाले की तरफ से नाजिल करता है। मा युकालु लका इल्ला मा कद कील लिर्रुसुलि मिन क़ब्लिक, और नहीं कहा जा रहा आपको, यानी साहिर और मजनून जो आपको कह रहे हैं, इल्जामात लगा रहे हैं, तो तहकीक ये कहा गया आपसे पहले बहुत सारे रसूलों को। इन्ना रब्बक लज़ू मग़फ़िरतिन व ज़ू इक़ाबिन अलीम, और बेशक तेरा रब अलबत्ता बख्शिश वाला और दर्दनाक सजा वाला है। यानी लोगों ने कहा ऐसे, तो जिन्होंने कहा, फिर जिन्होंने ईमान ले आए उनके लिए लजू मगफिरा हो गया अल्लाह, और जिन्होंने ये हरकतें यही की जो कुफारे मक्का करें, तो इकाबिन अलीम थे अल्लाह। मतलब जअलना हो, और अगर हम बनाते हैं हम इसको कुरान को अजमी, अलबत्ता वो कहते क्यों ना खोल खोल कर बयान कही ये आयत इसकी, क्या अजमी है और वो अरबी। यानी अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अजमी कुरान नाजिल हो जाता तब भी अभी अरबी आया है, क्योंकि शुरू में हमने हवामीम में देखा ना कि कुरान फुस्सिलत आयातुहु कुरान अरबियन, अरबियन अरबी जबान का तस्करा था ना। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि अगर ये कुरान अजमी जबान में होता तब भी ये ईमान ना लाते, तब ये कहते कि ये क्या बात हुई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अरबी है कुरान अजमी आ रहा है, या फिर ये कहते हैं कि हम तो अरबी हैं हम पे अजमी कुरान आ रहा है। ये हम लोग करते हैं, हम लोग करते हैं। हम जो अजमी है ना, उनको इस चीज पे बड़ी परेशानी होती है कि अरब जो है ना, उनमें से कुछ को, सबको तो नहीं। ये हमारी आजमाइश है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में से नहीं थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबी कौम में से है। ये फजीलत एक अरब कौम को मिली जिसे हमें तस्लीम करनी है। और कोई फजीलत फजीलत नहीं होती, अमल से फजीलत होती है। बनी इसराइल के ऊपर कितना गजब है अल्लाह का, अल्लाह ने उन्हें भी सिलेक्ट किया था। तो अरबों का भी मामला को मिलता जुलता ही है उनके साथ। तो ये सोचना कि नहीं अब हम अरबों की बहुत इज्जत करें, इज्जत सबकी करना चाहिए, चाहे अरबी हो या अजमी हो। तो हाँ, लेकिन ये हकीकत है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबी ही थे, उन्हीं की कौम में आए। तो अजमी थोड़ा सा इस चीज को लेके परेशान होते हैं, कुरान में तो ये अरब अरब कल्चर बहुत है, खजूरें हैं तो ऊंट है, तो सहरा है तो खैमे हैं, और उसको उस एंगल से देख रहे होते हैं। उस एंगल से हम क्यों देख रहे हैं? कुरान तो हर जबान में कुरान तो अल्लाह की किताब तो हर दौर में हर जबान में आई होगी यकीनन। 1,24,000 पैगंबर है, कितनी किताबें उतरेंगी, चाइनीज में भी आए होंगे, जापानीज में भी आए होंगे, हर जबान में आए होंगे नबी, कैसे नहीं आए होंगे, लेकिन आखिरी किताब आई है अब उस। तो ये उनका एतराज अल्लाह बता रहे हैं, इसमें हमें अपना भी एतराज नजर आ रहा है जो हम में से कुछ लोग करते हैं। कुल हुवा लिल्लज़ीना आमनु हुदन व शिफा, कह दीजिए कि वो यानी कुरान इन लोगों के लिए जो ईमान लाए हिदायत और शिफा है, और वो लोग जो ईमान नहीं लाते इनके कानों में बोझ है और वो इन पर अंधापन है। यही लोग वो पुकारे जाते हैं दूर की जगह से, यानी उनके लिए कुरान की बात ऐसे है जैसे कोई बहुत दूर की बात कर रहा हो, फासला इतना कि बात ही समझ नहीं आ रही। किसी के होंठ हिलते नजर आ रहे हैं, बस कोई कुरान पढ़ रहा है। अब हमारा मामला बिल्कुल ऐसे ही है, एक तो हमें कुरान समझ नहीं आता, हमें अरबी नहीं आती, तो कोई सामने कुरान पढ़ रहा तो हमें पता चल रहा है होंठ हिल रहे हैं, बस यही है होंठ हिल रहे हैं, जो कानों से टकरा रहा है हमें वो समझ नहीं आ रहा है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि अमल नहीं करना, तो ये भी ये आती है कि मकान बड़ी दूर की बात है ये। फिर तीसरी चीज ये है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जो आज के दौर की है वो भी ये थे, कुरान तो 1400 साल पहले के लिए था, इस पे अमल करना तो बहुत मुश्किल बात है, ये तो बहुत पुरानी बात है, अब ये कैसे हो सकता है? या हमारा एक रवैया ये भी होता है कि हम कैसे अमल करें, वो तो उम्महातुल मोमिनीन थी, तो वो तो अमल कर सकती थी। हकीकत है हम उतना अमल नहीं कर सकते, कोशिश कर सकते हैं। अगर हम पहले से ही ये बात कह देंगे तो वो टूटा फूटा अमल भी नहीं करेंगे जो हमें करना है। तो बंदा या तो ये कहे कि हाँ ये हमारे लिए रोल मॉडल है, अल्लाह हमें भी जैसा, हमें भी तौफीक दे के हम उनके नक्शे कदम पर चल सके, एक रवैया ये है। और एक रवैया ये है कि हम कैसे अमल कर सकते हैं, वो तो उम्महातुल मोमिनीन थी, हम तो उन जैसे नहीं बन सकते, वो तो सहाबा कराम थे। तो ये मकाने बईद पे रख देते हैं हम कुरान को। वलक़द आतैना मूसल किताब, अलबत्ता तहकीक दी हमने मूसा को किताब, बस इख्तलाफ किया इसमें से, और इस बस बस इख्तलाफ किया गया इसमें। और अगर ना होती एक बात जो पहले गुजर चुकी तेरे रब की तरफ से, लकुदिया बैनहुम, अलबत्ता फैसला कर दिया जाता है इनके दरमियान। व इन्नहुम लफी शक्किन मिन्हु मुरीब, और बेशक वो अलबत्ता शक में है इसमें, इसकी जानिब से, यानी कुरान के मामले में मिन्हु मुरीब, बेचैन करने वाले शक में है। मन अमिला सालिहन, जिसने अमल किए अच्छे तो अपनी ही जात के लिए है, वमन असा, और जिसने बुरा किया फ़अलैहा, तो उसी के पर जिम्मे है इसकी बुराई। वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद, और नहीं है तेरा रब बहुत जुल्म करने वाला बंदों पर। यानी किसी के साथ कुछ बुरा हो जाता है, कयामत में कोई अजाब मिल जाएगा, तो वो अल्लाह ने नहीं डाला होगा, वो उसकी अपनी कमाई होगी जिसका फैसला उसके साथ किया जाएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।